Hi, everyone. Thank you so much for joining us today for our World Environment Day special chapter. Well, before we get started, I would like to give a shout out to all of you who have been viewing our discussions week after week. It's a very early stage for us, and your support counts a lot. A heartfelt thank you to all of you. I'm Sakshi Soi. I'm the founder of Prowess, and I have Stuti with me today to co facilitate the discussion. Stuti Hi. has been, hi Stuti. So she has been a radio jockey. She's been a theater artist. She's been an event host by profession. And Shruti, your extensive experience in hosting is kind of making me nervous for today's session. It's nothing like that. Even every moment I learn from you, Sakshi, and the way you encourage your co-host and the way you organize all these things, it's really wonderful. And you're really great going. Thank you so much for inviting me here to co-host this great event. Thank you so much. Thank you so much for being here. I'm really looking forward to a lively discussion with you today. It's nice to have you by our side. Thank you so So, much, Sakshi. So for the event today, for the special occasion of Environment Day, we had that yesterday, and today we have a very special guest with us. We have the opportunity to host Mr. Gaurav Anand. He is the man who has led a lot of environment projects in Jamshedpur. You must have heard about the plastic tar road project specifically. I remember reading about it a couple of years ago, and I was pretty impressed by it, but I did not know who the man was behind it, right? And he's been the driving force to make Jamshedpur India's first smart city, which is a big, big thing, and we would love to hear about it today. But that's not all to him. We would like to dive in a little more, and to know who Gaurav Anand is, I will hand it over to Stuti, who has worked with him on several occasions. Stuti, your. Thank you so much, Sakshi. Yes, of course, it's really great opportunity for me to work with Mr. Gaurav Anand when we were in Mission Gange. First of all, I would like to invite Mr. Gaurav Anand से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे Thank you. और कहते हैं ना कि कोई भी ऐसा कैसी परिस्थिति कोई भी ऐसा सिचुएशन हमारे आड़े नहीं आ सकता और रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता जिसमें लिखा है कि खम ठोक लेता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़ मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है और उसी का जीता जागता उदाहरण हमारे सामने मिशन गंगे में जब मैं मिली गौरव सर से तो एक ऐसा देखकर ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि ये जो इंसान है जब हम लोग गंगा मैया की सेवा करने गए थे तो इनके अंदर की जो प्रतिभा है वो गंगा की एक एक बूंद जैसी पवित्र बहुत ऑनेस्टली वर्क करने वाले और प्रतिभा की खान कह सकते हैं जब आई एम टेलिंग यू साक्षी जब मैं और हम लोग जाते थे मेरा बेसिकली एंकरिंग काम था वहां पे भी और जब मैं गौरव सर और बछंद्री मैम बछंद्री पाल मैम इंडिया फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट तो जब उनके साथ हम लोग गए तो उन्होंने जब ये बात बोली तो वेरी प्लेजर फॉर ऑल ऑफ अस कि गौरव जो है ना वो मैन ऑफ एनवायरनमेंट है जिसको एनवायरनमेंट की चीजों पर ऐसी पकड़ है इतना डीप नॉलेज है जिसको कि हर कोई सुनना चाहता है एंड स्पेशली ट्रस्ट में वहां पे लोग गौरव सर को सुनने जाया करते थे और उनसे सीखने करते थे और उस एक महीने में जितना मुझे गौरव सर के बारे में जानने को मिला उसमें ये समझ में आया कि गैजेट से बहुत ज्यादा प्यार है मुझे एक वाकया याद है कि हम लोग जहां जहां भी जाते थे उनके साथ एक मशीन होती थी हमेशा और उससे पानी में कितनी गहराई है कितनी गंदगी है क्या क्या केमिकल्स मिले हुए हैं पीने लायक है भी कि नहीं है ये सब इन्होंने एडिशनली पता किया था ये हमारे मिशन का हिस्सा नहीं था बट ये इनकी इनिशिएटिव थी एंड ही इज नॉट ओनली दैट इनको डिजिटलाइजेशन से बहुत प्यार है ही वाज आर्ट लविंग पर्सन जिनको एनवायरनमेंट से भी प्यार था और आर्ट और एनवायरनमेंट को मिला के इन्होंने एनवायरनमेंट को चुना और बस एनवायरनमेंट पे इंजीनियरिंग करी है होप गौरव सर मैं सही कह रही हूँ बिल्कुल बिल्कुल जी साक्षी एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो अबाउट हिम सो दैट हमें लगता है कि और बात करेंगे तो बातें और निकलेंगी और जब बात चलेगी तो दूर तक जाएगी
मेरे पास इतने क्वेश्चंस है ना स्तुति एंड आई एम ऑलरेडी वेरी एनर्जाइज्ड। आपकी बात सुनकर और एनर्जी बढ़ गया है। तो आई थिंक हम लोग स्ट्रेट अवे डिस्कशन शुरू करते हैं। विल गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। तो स्तुति ने आपके बारे में, गौरव सर, इतने सारी बातें बताई, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, आपके वर्क के बारे में, आपके पैशन और इंटरेस्ट के बारे में टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, राइट। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका जो पूरा सफर रहा है जमशेदपुर को लेके, राइट। जमशेदपुर का जो जर्नी रहा है टू बिकम अ स्मार्ट सिटी। एक तो आई थिंक हमारे ऑडियंस के लिए टू अंडरस्टैंड स्मार्ट सिटी, आईओटी क्या है, उस एस्पेक्ट से, और कैसे जमशेदपुर ने ये टाइटल अचीव किया, उस जर्नी के बारे में अगर आप हमें थोड़ा बता सकें। सबसे पहले फेसबुक पे जुड़ने वाले हमारे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गौरव आनंद है और मैं पर्यावरण से पिछले 20 साल से जुड़ा हूँ। मतलब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया 2000 में, और 5 साल तक मैं भारत सरकार के साथ था। और मेरी पहली पोस्टिंग दिल्ली में ही थी, जहाँ पे मैंने कुछ नदियों के लिए भी काम किया, और कुछ दिनों तक मैं WWF में भी था, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर में। और मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं पर्यावरण के हर एक डायमेंशन को कम से कम एक बार तो जरूर एक्सप्लोर करूं, केवल ये देखने के लिए कि हमारा करियर उधर बनता है कि नहीं। तो मैंने आप अगर इसको दूसरी भाषा में बोले तो मैंने एनवायरनमेंट के हर एक डायमेंशन में अपना मुंह मारा। और फाइनली मुझे जो पता चला कि ह्यूमंस ने पिछले कई सालों में पर्यावरण को इतनी बुरी तरीके से लिया है, चाहे वो लोगों की आस्था हो, चाहे वो लोगों का कुछ विचार हो, उन्हें पता नहीं था कि जो ये नदियों में मूर्ति डाल रहे हैं इससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। हम जो नदियों में कचरा डाल रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हम जो नदी में सीवेज बहा रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और हम जब गांव में थे तो गांव में ऐसा देखा जाता था कि गांव में कभी लैंडफिल नहीं होता था। गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन स्टिल मतलब देयर वेस्ट मैनेजमेंट वाज सो प्रॉपर दैट दे अंडरस्टूड कि ये जो किचन वेस्ट है ये मतलब अगर जानवर को खिलाएंगे तो वो उसके लिए खाना है। ये जो ड्राई वेस्ट है, ड्राई वेस्ट नहीं था, वो लोग प्लास्टिक वगैरह उतना ज्यादा इकट्ठा भी नहीं करते थे। तो फाइनली क्या होता था कि गांव में आप नहीं देखेंगे कि म्युनिसिपैलिटी की कोई गाड़ी आ रही है और उसके मोहल्ले से वेस्ट लेके जा रही है, क्योंकि पीपल यूज्ड टू मैनेज देयर ओन। हम जब शहर में आए तो शहर में देखा कि लोग इतने पढ़े लिखे हैं और ट्रक से बिल्कुल और टेम्पो से अलग अलग चीजों से वो कचरा वहां से लेके जा रहे हैं, और हमारा काम केवल इतना ही होता था कि हम कचरा जनरेट करें और अपने घर के बाहर रख दिया। अब मेरा कोई उससे लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि मैंने शुरू से गंदगी को काफी नजदीक से देखा है। कहते हैं ना कि जो नो योर वेस्ट। तो मैंने कई लोगों से पूछा कि आपके कचड़े में क्या क्या निकलता है, आपको मालूम है? तो वो बड़े दूसरे तरीके से देखते थे कि जो यार कचड़ा देखने का क्या है। तो मैंने बोला कचड़ा को जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप किसी प्रॉब्लम को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा उसके लिए काम करने को। तो मैंने लोगों से ये कहा कि जो आप अपने कचड़े को समझिए कि आपके कचड़े में क्या है, वैल्यू है कि वाकई में कचड़ा है वो। तो जब लोगों ने बहुत ध्यान से उसको सुना, और मैंने उनको ये भी कहा कि अगर मैं आपके कचड़े को देखूंगा तो मैं आपके लाइफस्टाइल के बारे में बता सकता हूँ। तो बोला अरे ये तो ज्योतिष निकला भाई, ये तो कचड़े को देख के हमारे लाइफस्टाइल के बारे में बताने वाला बंदा है। तो मैंने जब मैं इनिशियली दिल्ली में था तो दिल्ली में मैंने वेस्ट के कई बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखे, और स्टार्टिंग में तो मेरे को लगता था कि ये कोई हिल स्टेशन है। लेकिन जब कुछ 1 साल 1.5 साल वहां पे रह लिए तब पता चला कि ये कचड़े का पहाड़ है, ये कोई हिल स्टेशन नहीं है। और उसकी वजह से दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है कि मतलब बोलते हैं ना कि जो हमारे सामने समस्या है लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो ऐसे ही हर एक महानगरों का हाल है। आज अगर आप कचड़े के बारे में लें, या वाटर पोल्यूशन के बारे में लें, नॉइज पोल्यूशन के बारे में लें, एयर पोल्यूशन के बारे में लें,
तो हर एक पोल्यूशन को हमने इस तरीके से पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को हार्म किया है कि कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि ये जो पेंडेमिक है, ये उसी का रिपरकशन तो नहीं है कि कहीं एनवायरनमेंट या नेचर हमसे बदला तो नहीं ले रही बिल्कुल कि कब तक वो सहती रहेगी और हम उनकी नदी को गंदा करते रहेंगे, कब तक बिल्कुल वो सहती रहेगी और हम पहाड़ पहाड़ में जंगलों को काटते रहेंगे। तो जब ये बोलते हैं ना कि जब अति हो जाता है तो उसका अंत नजदीक आ जाता है, तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। नहीं तो ऐसा लॉकडाउन मैंने अपनी हिस्ट्री में तो 40-42 साल की उम्र में ऐसा कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि पूरी दुनिया ठप हो सकती है। कोई और अभी सोच नहीं ऐसा, सकती। जी, और अभी का माहौल ऐसा है कि ये अभी दुनिया ठप नहीं हुई है। तमाम अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि गंगा, यमुना और सभी जो वाटर बॉडीज हैं, ये काफी अपने आप को हील कर चुकी हैं, काफी इंप्रूवमेंट आया है। इसका कारण एक ही है, इसका कारण एक है, हम लोगों ने वहां पे जाना बंद कर दिया है। और हम लोग जब वहां पे जाते थे तो अननेसेसरी, अननोइंगली वहां पे कचरा करके आते थे, जिसका खामियाजा नदी को भुगतना पड़ता था। और फाइनली वो जो हम नदी को पोल्यूट कर रहे हैं, और इस बार का जो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो थीम है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें अगर आप थोड़ा सा डीप जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि ये 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पूरे मिला के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें से 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गोल नंबर 9, 14 और 15 को टच कर रहा है। गोल नंबर 9 ये कहता है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए और उसके साथ साथ आप पर्यावरण का भी ख्याल रखिए। ऐसा नहीं कि जो पूरा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, सभी जगह को कंक्रीट कर लिया, अब आप बात कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, जब आपके पास लैंड है ही नहीं जहां पे कि वाटर परकुलेट कर सके, तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि पर्यावरण जिस पे कि हम पूरा का पूरा निर्भर है, न कि पर्यावरण हम पे निर्भर है आज। और यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं है कि प्लैनेट बी है जिसमें कि हम इसको गंदा कर चुके, अब हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं वहां पे, जैसे लोग बाग घर बदलते हैं, तो हम यहाँ पे घर भी नहीं बदल सकते, यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। और अगर हम जिस तरीके से अभी रह रहे हैं, अगर उसी तरीके से कंटिन्यू करें, तो आने वाला समय शायद हम लोगों को भी डायनासोर और दूसरे जानवरों की तरह एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हर रोज इस दुनिया में 150 से 160 जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं हर रोज, एवरी डे 150 टू 160 स्पीसीज। तो एवरी इससे डे आप अंदाजा लगा, एवरी डे आप एक बार गूगल करिएगा, तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये आदमी किस ऐसे दिन में चला जाएगा, शायद किसी को पता भी ना चले। और अभी जैसा कि आपने पूछा कि जमशेदपुर में एक बहुत ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थी, क्योंकि किसी भी स्मार्ट सिटी को बनने के लिए सबसे पहले तो ऐसा है कि जो उसमें हाइजीन फैक्टर होने चाहिए, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट का एक बढ़िया सुविधा होना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट की एक अच्छी सुविधा होनी चाहिए, पावर रिलायबल होना चाहिए, सड़क की मतलब कि अच्छी देखरेख वहां पे हो, स्ट्रीट लाइट्स होने चाहिए। तो ऐसे तमाम तरीके के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जब आपके शहर में ऑलरेडी हैं, तभी आप सोच सकते हैं कि आप अपने शहर को आप स्मार्ट सिटी बनाइए। लेकिन अगर आपके पास बेसिक ही नहीं है, अगर आपको कोई कहे कि आप उसको स्मार्ट बनाइए, तो ये तो हो गया कि स्टेप 0 से स्टेप 5, जो कि इम्पॉसिबल है। तो जमशेदपुर में क्या था कि चूंकि हमारे जितने भी लीडर्स रहे यहाँ पे और जो हमारे संस्थापक थे, स्वर्गीय श्री JN टाटा, जमशेद जी नसरवान जी टाटा, ये उनका विजन है, ये पूरा का पूरा शहर। और उन्होंने उस समय पे ही मतलब 1880-90 में ही उन्होंने कहा था अपने बेटे से कि इस शहर को जब भी बसाना तो एक काफी वाइड स्ट्रीट होनी चाहिए, हर एक धर्म के लोगों के लिए जगह होने चाहिए, पार्क्स होने चाहिए, लेक्स होने चाहिए। और आप जान के एक और बात बड़ी हैरानी होगी कि जमशेदपुर इज द ओनली स्टील सिटी इन द वर्ल्ड जहां पे कि स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द सिटी।
और फिर भी यहाँ पे आपको पॉल्यूशन दिखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो ग्रीन कवर है वो भी बहुत बेहतरीन है, मतलब इट्स अबव 35%। तो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ये पहले से ही यहाँ पे था। तो जब सरकार ने ये ऐलान किया कि हम पूरे भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो अब जरूर हम लोगों को भी वहीं से सीख मिली कि सरकार ऐसा सोच रही है, तो क्यों ना हम भी उसमें शामिल हो। और चूंकि ये हमारा तो एक ऐसा सिटी है जो कि टाटा के द्वारा रन की जाती है, तो हमें नहीं इतना मालूम था कि जो इसमें इस 100 सिटीज में हम नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी चूंकि हम इस सिटी को चला रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों में हम खुद इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम लोगों ने कुछ कुछ काम ऐसे किए इस शहर में, जिसको कि देखने के लिए वो 100 स्मार्ट सिटीज से लोग आए और उन्होंने यहाँ से सीख के अपने सिटीज में रेप्लिकेट किया। तो हमारा जो ये समझ है कि स्मार्ट सिटी किसी को कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले बहुत ही स्टेप 1 से शुरू करना चाहिए। स्टेप 1 ये है कि हम अभी किस जगह पे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट अगर कर रहे हैं तो हम कितना रिसाइकल कर रहे हैं? क्या हम 100% लैंडफिल में भेज रहे हैं, या हम 50% रिसाइकल कर रहे हैं और 50% रिसाइकल लैंडफिल भेज रहे हैं? तो ये सभी कुछ कुछ डेटाज हैं। ये डेटा हमको बहुत कुछ बताती है कि हम अभी कहाँ पे हैं। और ये डेटा अगर हमारे पास नहीं होगा और हम चलेंगे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, तो पता नहीं हम कहाँ पहुंच जाएंगे। तो एक तो हमारे पास डेटा होना चाहिए जो कि काफी जगह पे अवेलेबल है, जैसे कि सिटी डेटाज, काफी सारे ऐसे फोरम्स हैं, ऐसे ओपन पोर्टल्स हैं जहां से आप ले सकते हैं और अपने शहर से उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा जमशेदपुर से रिलेटेड, जिसमें कि हम लोगों ने दिखाया है कि कैसे जस्ट एडिंग, हाँ लोड हो चुका है। तो जी, तो किस तरीके से हम लोग पहले स्मार्ट तो थे ही और वहां से हम लोग स्मार्टर की ओर आगे बढ़े। तो ये जमशेदपुर है हमारा। आप देख पाएंगे कि जो इसमें 2 नदियां बहती हैं, और जहाँ पे इस पिक्चर में सेंचुरी लिखा हुआ है, वहां पे उस दोनों नदियों का मिलन हो रहा है। मतलब एक तरीके से बोलेंगे तो एक नदी का नाम है स्वर्णरेखा, जो कि बाईं ओर बह रही है, और एक नदी है खरकई जो कि दाहिनी ओर बह रही है। तो ये नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस स्टील प्लांट के यहाँ पे बसने का, क्योंकि स्टील प्लांट में पानी की बहुत खपत होती है। तो अगर पानी का सोर्स नहीं होगा तो उस स्टील प्लांट का मतलब कोई मतलब नहीं बनता, वो स्टार्व कर जाएगा। तो ये हमारा फैक्ट फाइल है पूरे शहर का, कि हम एक छोटे शहर हैं, लगभग 10 लाख जनता यहाँ पे रहती है, और 64 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा ये शहर है। और आप इसमें देख पाएंगे कि जो हमारे यहाँ पावर अवेलेबिलिटी है 99.9% है। मैंने पिछले कई महीनों से 1 मिनट के लिए भी पावर कट नहीं देखा, और मैं यहाँ पे, ये मेरा 15वां साल है। तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो मुझे ये सभी चीजें बहुत खलती है, और इसकी वजह से मैं अभी जमशेदपुर में हूँ। और जमशेदपुर में इस सब चीज का बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। रोड्स काफी अच्छे हैं, ग्रीन कवर काफी अच्छा है, पूरा शहर लगभग सीवेज लाइन से, सीवर लाइन से पूरा कनेक्टेड है। आपको कहीं पे भी सेप्टिक टैंक नहीं दिखेगा, तो स्मेल्स इशू ये सभी चीज आपको दिखेगी नहीं यहाँ पे। तो सरकार ने जो बनाया कुछ गाइडलाइंस, जिसमें कि उन्होंने कहा कि अगर कोई सिटी स्मार्ट बनना चाहती है तो इनिशियली इन सारे कोर एलिमेंट्स को ध्यान में रख के वो काम कर सकती है। तो इसमें उनका सबसे पहला था वाटर सप्लाई, जो कि 24 घंटे होनी चाहिए। बिजली की सप्लाई वो भी एकदम अनइंटरप्टेड होने चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जबरदस्त होने चाहिए। अर्बन मोबिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सभी बहुत अच्छे से होने चाहिए। आपने देखा होगा कि इसमें बॉम्बे में, सूरत में काफी अच्छा काम हुआ है। वो मतलब मेट्रोज वगैरह भी इसके तहत काफी शहरों में आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कि हाउसिंग है, और ये सब काफी प्लान्ड होने चाहिए। सिटी रोड नेटवर्क भी प्लान्ड होने चाहिए। आईटी कनेक्टिविटी, और
चूंकि ये डिजिटलाइजेशन का जमाना है और इसमें आईटी कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है, तो आप अगर हर चीजों को कनेक्ट करते हैं और आपके पास बढ़िया नेटवर्क नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता है। सिटीजन का पार्टिसिपेशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि हमारा शहर स्मार्ट बने, लेकिन हमारे शहरवासी चाहते नहीं कि हमारा शहर स्मार्ट बने। वो चाहते हैं कि जो पहले हमारे शहर में तो बेसिक तो कुछ सही हो। तो लोगों का जो मन है, लोगों का जो एक्सपोजर है, कुछ लोग वॉशिंगटन डीसी में 10 साल बिता के हमारे शहर में रहने आए हैं और कुछ लोग गांव से आए हैं, तो दोनों का जो स्मार्ट सिटी का जो परिभाषा होगा बिल्कुल अलग होगा। तो एक गांव से आए हुए लोगों को लगेगा अरे यार यहाँ पर तो सब कुछ है और तो कुछ चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई बाहर से आए तो उसको हमेशा लगेगा अगर ये यहाँ पे ये भी होता, डिजिटलाइजेशन का ये चीज होता, अगर ट्रैफिक लाइट स्मार्ट होती तो काफी अच्छा होता। तो हर किसी का स्मार्ट सिटी पे एक्सपेक्टेशन अलग अलग है। इस वजह से हम लोग बहुत दूर तक भारत में स्मार्ट सिटी पे आगे नहीं बढ़ पाए। ये एक उसमें बहुत बड़ा बॉटलनेक है। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। इन्वायरमेंट को हमेशा हम कद्र करें और हम हमेशा ये सोच के करें चलें कि जैसे कि सस्टेनेबिलिटी का अगर आपको हम मतलब बताएं तो सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स होते हैं। एक होता है पीपल, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है प्लैनेट। अगर आप कोई भी इनिशिएटिव ले रहे हैं और वो अगर पीपल, प्रॉफिट या प्लैनेट इन तीनों में से किसी के लिए भी ठीक नहीं है, मतलब किसी 2 के लिए ठीक है और प्लैनेट के लिए ठीक नहीं है, किसी 2 के लिए ठीक नहीं है, ठीक है और वो पीपल के लिए ठीक नहीं है, तो वो सस्टेनेबल नहीं कहलाएगा। तो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे यही है कि आप इन्वायरमेंट से हाथ मिला के चलें और दूसरे जो जीव हैं, दूसरी जो इन्वायरमेंट में नेचर का जो हिस्सा है, जैसे नदियां हैं, पहाड़ हैं, मरुस्थल है, इन सब का बहुत योगदान है। बहुत साइंटिफिक चीजें हैं ये, और शास्त्रों में भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। और हम जैसा कि जानते हैं कि ये अर्थ जो है, गूगल से पता चलता है कि ये 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। तो अगर ये पृथ्वी 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है तो नदी ऐसा नहीं है कि 100 साल पहले आई होगी, नदी भी लगभग उतनी पुरानी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि नदी ह्यूमंस के आने के कई लाख सालों पहले से बह रही है। और ये अगर हमारी वजह से इसको गंदा होना पड़े, हमारी वजह से दूसरे जानवर को अगर ये सोचना पड़े कि जो ये आदमी इतना गंदा कर चुका है कि ये हमारे पीने लायक नहीं रहा, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम पढ़ लिख के इतना भी समझदार नहीं हो पाए कि हम पर्यावरण का उतना भी कद्र कर पाए। बहुत लोग इसको बोलते हैं कि जो अवेयरनेस नहीं है। अब आप सोचिए कि हमारे में इतनी अवेयरनेस है कि मुझे मालूम है कि वाटर जो है वो H2O होता है, और H2O मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। तो हम इतने समझदार हैं, लेकिन फिर भी हम एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं। अब आप पेड़ से पूछने जाइए, पेड़ को कुछ भी नहीं मालूम है, चिड़ियों को कुछ नहीं मालूम है, जानवरों को कुछ नहीं मालूम है कि हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, लेकिन वो मजा ले रहे हैं पानी का, वो मजा ले रहे हैं नेचर का। आप कभी बारिश देखिए, बारिश हो रही है और पेड़ पे अगर बारिश छूटने के बाद पेड़ पे चिड़िया कितनी चहचहाती हुई, कितनी खुश नजर आती है। तो उनमें तो अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, फिर कैसे खुश हैं वो? तो अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल नहीं है, सबसे बड़ा रोल है हमारी समझ का कि हम पर्यावरण को कितना वैल्यू देते हैं और कितना उससे लोगों का पर्यावरण से कल्याण हो रहा है। तो ये हम स्लाइड आगे बढ़ा रहे हैं क्या? ये आगे बढ़ रहा है क्या इसमें? अभी लोड हो रहा है। अच्छा, इससे पहले स्लाइड लोड हो, आई वांट टू मेंशन समथिंग हियर। अभी गौरव जी ने बताया अपने अवेयरनेस के बारे में, तो इनके खुद के घर में बिल्कुल जीरो वेस्ट रिलीज होता है, जैसा मुझे पता है आपके बारे में सर। और आपके खुद की घर के बालकनी में बायोगैस प्लांट लगा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी पिछले 6 महीने पहले मैंने उसको हटाया था कुछ कारण से, लेकिन तब तक ये हमारे पास था यहाँ पे, और हमने इसको 3 साल तक यूज किया, और 3 साल तक इससे हमने काफी गैस यूज किए, और हमारे घर से कोई भी कचरा बाहर नहीं निकलता था। जो भी ड्राई वेस्ट होता था
उसको हम कबाड़ी वाले को बेच लेते थे, और जो भी ऑर्गेनिक कचरा होता था उसका हम बायोगैस बना लेते थे या कंपोस्ट बना लेते थे। तो वी वर वन ऑफ द जीरो वेस्ट हाउस इन जमशेदपुर। तो मतलब इसके जरिए भी बहुत लोगों को बहुत संदेश देने की कोशिश किया हमने, और कुछ लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया अपने घरों में। और आज हम लोग की एक मुहिम है जमशेदपुर में, स्वच्छता पुकारे। स्वच्छता पुकारे के काफी सारे लोग, काफी मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स वो जुड़े हुए हैं आज इस फेसबुक लाइव में। तो वो लोग भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। उनका ये सोच है कि ये जो हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, ये जो हम लोग होम कंपोस्टिंग करते हैं, क्यों ना इसमें हम लोग खुद पहले सीखें, मतलब हमारी जो टीम है वो खुद सीख ले, और उसके बाद शहर में कम से कम हम लोग ऐसा टारगेट लें कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 का, इसमें हम लोग पूरे शहर में 10,000 लोगों को, 10,000 फैमिलीज को होम कंपोस्टिंग इस्तेमाल करने के लायक बना दें, ताकि वो अपने घर में होम कंपोस्टिंग करते रहे और उससे उनको फायदा मिलता रहे। तो हम लोग काफी सारा एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसमें शहरवासियों का काफी योगदान है, और शहरवासी भी काफी साथ दे रहे हैं। और हमारे ग्रुप से जितने लोग ज्वाइन किया है, जितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, वो काफी हाईली एजुकेटेड लोग, और उनका विजन आप सोच सकते हैं कि जो हर एक संडे जो कि उनकी परिवार के लिए होता था, वो पूरा का पूरा समय वो पर्यावरण के लिए देते हैं, और वो भी बिना किसी और हमारा जो ये प्रोग्राम है स्वच्छता पुकारे, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि मेरे को लगता है कि ये एक बहुत सारे मुहिम में से मैंने एक इकलौता मुहिम ऐसा देखा जो कि बिल्कुल सस्टेनेबल है, जीरो खर्चा, 1 रुपया खर्च नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, हमारे जितने मेंबर्स हैं, सभी अपना ग्लव्स लेके आए, सभी अपना मास्क लेके आए, और सभी अपने-अपने साथ एक बोरी लेके आए। और उसके बाद जहाँ भी हम जुटते हैं, कचरा साफ करना शुरू करते हैं, और वो जीरो खर्चे पे हमारा पूरा का पूरा काम हो जाता है। और एक शहरवासियों को क्या होता है कि हम लोगों को देख के एक मैसेज मिलता है कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, इनका अपना परिवार है, फिर भी संडे को ये नदी के लिए, मार्केट के लिए क्यों दे रहे हैं? क्या ये पागल है? तो देखिए क्या होता है कि जो हर कोई कहीं न कहीं से प्रेरित होता है। तो हमें भी ये प्रेरणा मिली, बहुत सारे हमारे श्रमदानी मित्र हैं, कुछ लोग जुड़े भी हैं, जैसे शिखर पालीवाल जी हैं, वाराणसी से तेमसुतुला एमसोंग जी हैं, जो कि नागालैंड की हैं, लेकिन वाराणसी में रह के वो हर रोज सुबह घाट पे जाती है सफाई करने के लिए। उनको क्या मिलता है? तो ये तो प्रेम है, ये प्रेम है, और इसमें मतलब कि पर्यावरण के प्रति उनका जो रुझान है, इसकी वजह से वो कर पा रही हैं। वरना लोग यही चाहते हैं, आज छुट्टी का दिन है, आराम से 9 बजे तक सोएंगे, एसी चला के, गर्मी का मौसम है, सुबह उठेंगे, बढ़िया से ठाट से नाश्ता करेंगे, और उसके बाद फिर बस आज का दिन तो आराम का है। लेकिन हम लोगों ने अभी तक जी। वो जो सफाई करने की जो फीलिंग होती है, ये अपने आप में बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने मतलब कुछ एक दिन ही सही, 1 घंटा ही सही अपनी सोसाइटी की तरक्की के लिए कुछ किया है। ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है, ट्रस्ट मी। जब मैं वाराणसी में थी साक्षी, एंड जब मैं तमसीतुल्ला जी से मिलने का मुझे मौका मिला था, तो उन्होंने भी काफी कुछ मुझे सिखाया था कंपोस्टिंग के बारे में। एंड मैं गौरव जी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लोगों को ज्यादातर प्रॉब्लम यही होती है। अगर हम अपने घरों में देखें, अपने आसपास देखें, जो सफाई वाले सुबह सुबह भैया आते हैं सफाई करने वाले, उनको भी ये नहीं पता कि हमें गीले कचड़े को और सूखे कचड़े को अलग करना है। या हमारे किचन में भी आप देखेंगे तो पॉलिथीन जिसमें डाला है उसी में हमने खीरा छील के उसका छिलका भी डाल दिया, हमने संतरे की का छिलका भी डाला, और हमने वो दोनों को ऐसा मिक्स किया कि ना ही वो गाय खा सकती है, ना ही वो किसी काम में आ सकता है। लेकिन कचड़ा इज अ रियल गोल्ड, जैसा कि मैंने खुद गौरव जी से सुना है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। कचड़ा कहना ही सबसे पहला जो है वो ठीक नहीं लगता है। कचड़ा एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और कचड़े में क्या है कि जो आज हम अगर कचड़े को अलग-अलग करें, तो हम एक छोटा-सा आपको प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहते हैं। अगर आपने कचड़े का अगर ये मसला उठाया है,
तो मैं चाहूंगा कि लोगों को Oh, एक yeah. स्क्रीन शेयर करूं। ये इसलिए क्योंकि ये हर घर की बात है, मतलब जी अब सुबह से लेके रात तक 2 डस्टबिन तो कम से कम हर घर में जरूर बढ़ता होगा। सब्जियों को ले लें, कोई भी चीज ले लें, घर में जितनी चीजें आती हैं कहीं ना कहीं से वो वेस्ट तो जरूर निकलता है उसमें से। आप Absolutely. देख पा रही हैं ये हाँ, स्लाइड? लोड हो गया। Yeah. इसमें लिखा हुआ है वेस्ट। हम्म, तो हम आप लोग से पूछना चाहेंगे कि इस वेस्ट का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? अगर इसको बोला जाए कि इसका एब्रिविएशन का फुल फॉर्म बताइए, हाँ. तो इसका फुल फॉर्म Anybody from the audience? आप बताएंगे। तो ये देखिए, ये माउंटेन्स ऑफ गार्बेज है, जो कि जगह जगह पे देखिए कितने सारे बच्चे वहां पे हैं, और इनके लाइफ के बारे में आप सोचिए कि ये किस जिंदगी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ओहो। और ये कचरे का पहाड़ देखिए, इसमें मतलब कि दूसरे जानवर भी लगे पड़े हैं। ये देखिए ऊपर में एक गाय है। तो मतलब आप तरीके से देखिए तो ये वेस्ट जो है ये मिक्स वेस्ट है। इसमें प्लास्टिक भी है, कागज भी है, इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट भी है। Electronics, everything. जी, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आप जिस भी वेस्ट के बारे में सोचें, आपके मकान का डेबरी, हर कुछ है। तो इसको देख के अगर आप मेरे से पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है वेस्ट का, तो मैं आपको बताऊं, इसका फुल फॉर्म ये है, वी आर स्पॉइलिंग द एनवायरनमेंट। और ये मेरे को बहुत टचिंग लगता है, और ये बिल्कुल सच लगता है। और जो हम लोग वाकई में एनवायरनमेंट को जितने तरीके से हो सकता है प्रदूषित करने में ही लगे हैं, स्पॉइल करने में ही लगे हैं। बहुत कम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। हाँ, कहीं पर आई थिंक जैसे जो अदर साइड स्पेशली जो लोग हैं जो नहीं इसके टुवर्ड्स काम कर रहे हैं, क्या होता है कुछ कन्वीनियंस हो जाता है। हम लोग जी। इतने यूज टू हो गए हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करने के लिए, गार्बेज थ्रो करने के लिए। अगर हमारी Exactly. सोसाइटी में सेग्रीगेशन हो रहा है वेस्ट का, तो हम सेग्रीगेट करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो हम उसको इकट्ठा करके एक साथ दे देंगे। बिल्कुल। मेरे को पता भी है, हमें पता भी है, हमें अवेयरनेस है, पर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे क्योंकि इनकन्वीनियंट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो और इसमें जो नॉट ओनली दैट, अगर हम लोग सेग्रीगेट करके दे भी रहे हैं तो जिस हाथ वो में भी दे रहे हैं mix कर उन्होंने रहा है। मिला Exactly. दिया, उन्होंने Finally मिला mix। दिया। तो जी। अभी कंट्री में जिस तरीके से है, तो हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट में जनरली क्या कर रहे हैं, वेस्ट को एक जगह से दूसरे जगह केवल ट्रांसफर कर रहे हैं। आपके घर का जी। कचरा आपके घर से दूर हो रहा है, और कहीं दूसरी जगह जाके वो उसका ढेरी लग जा रहा है। फिर वहां से अगर किसी ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोला कि जो यहाँ पे कचरे का अंबार लगा हुआ है, तो फिर वो क्या करेंगे कि अपने वेंडर को बोलेंगे, उसके वेंडर आएंगे वहां पे बड़ी गाड़ी लेके, उस कचरे को उठा के फिर तीसरी जगह पे लेके चले जाएंगे। तो हम लोग प्रॉब्लम को एक जगह से दूसरे जगह केवल ट्रांसफर कर रहे हैं, बशर्ते इसके कि अगर हम सोर्स पे उसको सेग्रीगेट करें। जैसे कि आप अगर इसमें इस स्लाइड में आप देखेंगे कि मैंने लिखा है नो योर वेस्ट, कि आप अपने कचरे को जानिए कि आपके कचरे में है क्या। तो आप अपने कचरे को जब जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके किचन से जितना भी 60% के लगभग कचरा निकलता है, वो बिल्कुल प्योर खाद बन सकता है, जिसको कि आप अपने बगीचे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी प्लास्टिक्स हैं, पेपर्स हैं, ये सभी आप मेटल्स हैं, ग्लास हैं, ये सभी आप कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं हर एक वीकेंड में। और बाद में जो इनर्ट्स वगैरह है, जो आपके घर में झाड़ू देने के बाद जो धूल कंकड़ ये सब निकलता है, तो उस चीजों में आप देखेंगे कि उस चीजों से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। उस चीजों से लो लाइंग एरियाज को भी भरा जा सकता है। तो मिला जुला के ये जो 60% वेस्ट है जो कि आपके किचन से निकल रहा है, इसको कितने आसान तरीके से आप इसका डिस्पोज कर सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा। और ये देखिए, सबसे पहले घर में 2 बिन रखिए, और बैंगलोर की एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.2bin1bag.in। तो ये जो 2bin1bag.in का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा जबरदस्त है, और जमशेदपुर में हम लोग इसको फॉलो करते हैं। इसमें क्या है कि जी 2 बिन रखते हैं, और जी, तो 2 बिन और एक बैग में
हम लोग का सारा कचरा आ जाता है। ये रेड बिन में हम लोग जितने भी हाउस होल्ड हजार्डस वेस्ट या हाउस होल्ड बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स हैं, फिर जो बच्चों का ये हगीज है, ये सभी चीज, और जितने भी सिरिंजेस हैं, ये सभी चीज इसमें हम लोग रख सकते हैं रेड वाले में। ग्रीन वाले में पूरे का पूरा किचन वेस्ट रख सकते हैं। और ये जो झोला साथ में दिया है, इसमें पेपर, ग्लास, मेटल जो भी हम बेच सकते हैं कबाड़ी वाले को, वो रखें। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस सेग्रीगेशन करने के चलते, इसकी वजह से आप पूरा का पूरा वेस्ट आपके घर से जो निकल रहा है, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ पाते हैं और उस पे आप जीत हासिल करते हैं। इसलिए लिखा है डिवाइड एंड कंकर वेस्ट। तो उसका सबसे पहला मूल मंत्र है, साक्षी जी ने बहुत आपने सही कहा कि सेग्रीगेशन एट सोर्स, विदाउट दैट नथिंग इज पॉसिबल। अभी आप देखिए आपके किचन से ये निकलता है। इस कचड़े को तो हर कोई जानते होंगे, लेकिन अगर इस कचड़े को अगर मेरे को कोई दिखाना चाहे तो मुझे घृणा आएगी। मैं बोलूंगा यार क्या दिखा रहा है ये कचड़ा, ये तो कोई मतलब नहीं है, चलो थिएटर चलते हैं, मॉल चलते हैं, 500 रुपए का एक टिकट लेते हैं, एक मूवी देख के आते हैं। लेकिन वो मूवी देखने से मेरा 3 घंटे के लिए मूड सही हो जाएगा, लेकिन इस किचन वेस्ट ने पूरे दुनिया का मूड सैकड़ों वर्षों से खराब किया हुआ है। इसके बारे में हम नहीं सोचते। और आप पिछले 100 साल का अगर वेस्ट का हिस्ट्री देखेंगे तो ड्यूरिंग लास्ट 100 years वी हैव पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट सो मच कि हमने पुराना सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और खामियां जितनी हो सकती हैं आप देखेंगी कि 200 साल पहले मतलब कि 1880 में आप अगर पूरी दुनिया का पॉपुलेशन देखेंगे तो इट वाज 1 बिलियन। मात्र 200 सालों में वी हैव ग्रोन 8 गुना ज्यादा। तो एक तो मेरे को महसूस होता है कि ये दुनिया ओवर क्राउडेड हो चुकी है, जिसका ये खामियाजा और नतीजा है कि इस तरीके से ये जो जूनोटिक वायरसेस हैं, जूनोटिक कहने का सेंस इसलिए है कि हम लोग की जो जनसंख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हम लोग जानवर की जगह को भी एनक्रोच करने जा रहे हैं। तो अगर हम जानवर की जगह को हम अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके वायरसेस को तो अपनाना पड़ेगा, उनके मतलब उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। जी आप कुछ कह रही थी साक्षी जी। ये आपने जो 2 bin 1 bag वाली बात कही, हम मुंबई से पहले हम लोग हैदराबाद में थे और हमारा जो सोसाइटी था वहां पर इम्पोज कर दिया गया था। तो जैसे मैं एक इनकन्वीनियंस की बात कर रही थी, पर वहां पर जब सोसाइटी रूल बन गया और उन्होंने 10 दिन दिए आपको टू गेट यूज टू इट, कि आप आदत एक इसको बना लीजिए सेग्रीगेट करने का। अगर उसके बाद आपने सेग्रीगेट नहीं किया तो गार्बेज पिकअप ही नहीं होता था। फोर्सफुली 2000 प्लस फैमिलीज ने सोर्स पे सेग्रीगेट करना शुरू किया एंड सोसाइटी के विद इन उन्होंने एक कंपोस्ट बनाया हुआ था फॉर द ग्रीन वेस्ट। तो आई थिंक एट स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है और इवन टियर 2 सिटीज में इतने सारे हम लोग गेटेड कम्युनिटीज है आज की डेट पे, तो जो सोर्स पे सेग्रीगेशन का प्रॉब्लम है उसको काफी हद तक रेजिडेंशियल कॉलोनीज में किया जा सकता है। एग्जैक्टली। एक इसमें एक और विचार आया, जैसे कि आपने जो बोला बहुत बढ़िया बताया, हैदराबाद का एग्जांपल लिया। मैं इसमें ये बोलना चाहता था कि जैसे कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले स्मार्ट सिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो अगर हम लोग जैसे कि बैंगलोर में, हैदराबाद में और सभी सिटीज में आजकल गेटेड कम्युनिटी बहुत ज्यादा होते हैं। और इस गेटेड कम्युनिटी में क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हम करें अपने मोहल्ले में, ताकि दूसरे मोहल्ले के लोग, दूसरे कम्युनिटी के लोगों को यहाँ से सीखने को मिले और अखबार में हमारा नाम आया कि ये जो आशियाना कॉम्प्लेक्स है, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि 200 फ्लैट हैं और आज के दिन में ये बिल्कुल ही इसके अंदर से कोई भी वेस्ट बाहर की ओर नहीं जाता है। मतलब इनका कोई वेस्ट म्युनिसिपल कंट्रीब्यूशन में कोई भी वेस्ट नहीं देते, मतलब पूरा का पूरा वेस्ट ये अंदर में ही डिस्पोज ऑफ करते हैं। जितना ऑर्गेनिक है उसको कंपोस्ट बनाते हैं और जितना भी ये मतलब सूखा कचरा है, इससे ये एक फंड जनरेट करते हैं और सोसाइटी के फंड में उससे वो इजाफा होता है। तो काफी सारे इस तरीके के मुहिम को लिया है। कंपोस्टर की हम बात कर रहे हैं कि इस किचन वेस्ट को आप कितने आसान तरीके से अपने घर पे ही खाद में बदल सकते हैं।
Interesting. तो उसके लिए एक तो ये माई ग्रीन बिन है, इसका आप अगर यूट्यूब में भी देखेंगे Am I तो आपको audible to काफी you, अच्छे Sakshi? Yeah, या यू आर ऑडिबल। you're audible. तो इस ग्रीन बिन में क्या होता है कि इसमें हम लोग अपने घर का किचन वेस्ट लेयर बाय लेयर डालते हैं और उसके बीच में हम लोग सॉइल या कंपोस्ट का एक लेयर डालते हैं, ताकि सॉइल या कंपोस्ट के साथ मिलके वो भी वेस्ट जो है कल को कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये तो मतलब प्लास्टिक का है और ये बैंगलोर की एक कंपनी है जिसका नाम है डेली डंप। तो डेली डंप ये वाला सेटअप बनाती है घड़े वाला, और इसको हम लोग बोलते हैं 3 टियर खंबा, और ये 4 लोगों की फैमिली के लिए काफी है। लेकिन अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो उस पे एक जनरल आदमी जिसके पास ये तीनों व्यवस्थाएं उसके घर पे नहीं है, वो कैसे अपने घर में कंपोस्ट में कन्वर्ट करे अपने किचन वेस्ट को। तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये देखिए, आपके घर में गमला तो होगा, और जो भी ये स्क्रीन पे आया क्या होम कंपोस्टिंग पॉट्स? हाँ जी, आ गया। साक्षी Yes. आ गया। तो ये यहाँ पे देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में जो पॉट्स हैं ये काफी ब्यूटीफुल पॉट्स हैं। ये आप इसमें काफी बढ़िया लाइवलीहुड भी आप जनरेट कर सकती हैं। अगर आप अपने शहर में लोगों को ये कहें कि आप अपने कचड़े को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये सभी आप यूज करके, ये जो बाई साइड में है, तो मेरे को लगता है कि कोई भी इसको अपने गार्डन में रखने से बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि ये बहुत ही खराब लगेगा, और देखने में भी काफी खूबसूरत लगेगा। और इसके अंदर में कचड़ा जो है वो 30 दिन के अंदर में वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपके पास ना हो तो टू स्टार्ट विथ व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट मेकिंग कंपोस्ट इन अ फ्लावर पॉट व्हिच इज वेरी इजी। हमारे इंडिया में क्या है कि हम चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि बहुत लोग उसको करने से डरते हैं कि कल को इसमें बास आएगा, स्मेल आएगा, तो मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे कि पूरे घर में कचरा फैला रखा है, तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हम लोग उस पे हमारा बहुत सारा दिनचर्या निर्भर करता है कि लोग क्या बोलेंगे। तो हम लोग उस चीजों को छोड़ें और एक ऐसा डेवलप करें, कुछ ऐसा मुहिम जिसमें कि हम लोग जो ये गरीब पॉटर्स हैं, और ये गरीब पॉटर्स आज के दिन में भूखे मरते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि हम घड़े को बिल्कुल एलिमिनेट कर चुके हैं। इसके बजाय हम घरों में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं और तमाम तरीके का चीज, जैसे कि ये जो पॉटर है, इसका क्या हम साल में अगर आप देखें तो केवल एक ही टाइम, 2 टाइम होता है जब मूर्ति बनाने का टाइम होता है मिट्टी से। तो क्यों ना हम इनके लिए लाइवलीहुड जनरेट करें और इनके बनाए हुए घड़े को हम हर एक घर में एज अ कंपोस्टर यूज करें। तो आप सोचिए, आप इनके जगह पे अपने आप को रख के देखेंगे तो इनकी जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी। तो न कि हम एक तरफ वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ऐसे लोगों को के लिए भी सोच रहे हैं, इनके लिए लाइवलीहुड का भी सोच रहे हैं। तो हम आपको जस्ट एक छोटा सा ये बताते हैं कि जो इसमें कंपोस्ट बनाने का तरीका है क्या। तो आप गमले में, सबसे पहले गमले में आप देखेंगे कि नीचे एक होल होता है जिससे कि पानी निकलने का वो रास्ता होता है। तो सबसे पहले उस पानी के रास्ता को थोड़ा सा उसमें एग्रीगेट गिट्टी वगैरह डाल के उसको बंद कर लीजिए, ताकि वो कभी चोक ना हो जाए और उसमें कुछ ऐसा ना हो कि जाके मिट्टी फंस जाए और उसमें मतलब कि कोई भी उसका बाहर के इन्वायरमेंट के साथ कोई कांटेक्ट ना रहे। और उसमें सबसे पहला लेयर जो है उस गमले में आप या तो कचड़े का डाल सकते हैं, यानी तो सूखे पत्ते का डाल सकते हैं, यानी तो कंपोस्ट का डाल सकते हैं। अच्छा रहेगा अगर थोड़ा सा आपका जो घर का जो मिट्टी है, आपके आसपास की जो सॉइल है, वो एक लेयर हार्डली 1 इंच वो डाल दें। उसके बाद उसमें एक लेयर आप आज का कचरा डाल दीजिए। आज का कचरा जब आपने डाल दिया उसमें, तो उसमें आप सूखा कुछ डाल सकते हैं। सूखे में बहुत कुछ होता है, या तो आप पेपर का टुकड़ा डाल सकते हैं, पेपर इज ऑल्सो कंपोस्टेबल। दूसरा होता है कि ड्राई लीव्स भी बहुत ज्यादा होते हैं घरों में, पेड़ अगर होता है तो कुछ ड्राई लीव्स उसके ऊपर में डाल दिया। कुछ हमने नारियल का जो छिलका होता है जिसको हम लोग कोकोपीट भी बोलते हैं, वो भी अगर आप बाजार में जाएंगे तो बाजार में जो नारियल वाला है वो आपको वो उसका कचड़ा है,
वो आपको फ्री में दे के जाएगा। वो अगर आप बोलेंगे कि जो भैया आप मेरे को ये जो नारियल का जो कॉयर है, ये जो कोकोपिट है, ये मेरे को दे दीजिए, ये डस्ट कितना लेंगे? तो वो बोलेंगे अरे ये तो मेरा कचरा है, ये तो मेरे को फेंकना था, आप लेके जाइए। आप हो सकता है कि आपको कुछ पैसे भी दे दे वो, कि आपने उसके कचरे को डिस्पोज ऑफ कर दिया। और उसके बाद जब आप पहला लेयर कचरे का डालते हैं तो जस्ट 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ताकि उसको डालने के बाद आपको कचरा ऊपर से दिखे नहीं, बस इतना ही होना चाहिए और उसके ऊपर कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट डे उस नारियल के कॉयर के ऊपर, उस पत्ते के ऊपर जो भी आपने डाला है, फिर से आप थोड़ा सा कचरा डालिए। फिर उसके बाद आप एक लेयर उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट या मिट्टी वगैरह डालिए, ताकि हर एक लेयर के बीच में एक ऐसा लेयर कंपोस्ट और मिट्टी का हो जो अपने ऊपर को भी खाए और अपने नीचे को भी खाद बनाए। आप ये कितना सिंपल है, आप देखिए ना कि बहुत सारे धर्म में मतलब कि बरी करने का ये है, उनका प्रावधान है। तो लोग मतलब कि जो लोगों को या किसी भी चीज को हम जमीन में जब दफनाते हैं तो क्या होता है कि आज ना कल वो मिट्टी में मिल जाता है। तो ये नेचर है, मतलब लॉ ऑफ नेचर है। तो आप कचड़े को भी इसी तरीके से खाद बना सकती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है और ये बहुत आसान तरीके हैं इसमें कन्वर्ट करने के। और ये जो खाद होगा ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक खाद होगा, कंप्लीटली जैविक खाद होगा। और इससे आपका जो गार्डन है, आप जब इसको यूज करेंगे तो आपको फर्क महसूस होगा और आपको आपकी जो सीजनल फ्लावर्स हैं जो कि आपने लगा रखे हैं उसमें आपको लगेगा ये क्या मस्त खाद है। और आपने वेस्ट भी कम जनरेट करना शुरू किया। आप जरा सोचिए, अगर आपने ये अपने घर में शुरू किया, ऊपर से आपके जितने भी ड्राई वेस्ट हैं वो आपने रैग पिकर्स या कबाड़ी वाले को बेचना शुरू किया, तो आपका वेस्ट का जब कंट्रीब्यूशन आपकी सिटी के लिए 0 हो गया या बहुत कम हो गया, तो इससे बड़ा सहयोग एक इंडिविजुअल का स्वच्छ भारत के लिए क्या हो सकता है कि हम वेस्ट जनरेट ही ना करें। तो ये एक मुहिम है जिसमें कि, और ये उसी किचन वेस्ट से आप बायोगैस भी बना सकते हैं। ये सेटअप है, ये मेरे बालकनी का है जो कि आज से 6 महीना पहले था। अभी तो मैंने इसे हटा दिया है, कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट इसमें चल रहा है इस वजह से। तो ये बालकनी में हमने रखा था तो कई दिनों तक लोगों को पता नहीं चला कि ये क्या है। तो इसके लिए मुझे मतलब कि आप सोचिए, अगर वाइफ घर की गृहिणी जो है, अगर उसको ये पसंद ना हो तो कोई भी दुनिया का या मायका लाल ये अपने घर में नहीं कर सकता है। क्योंकि घर में ही कचड़े को रखना और घर में ही उसको कन्वर्ट करना, तो उसका स्मेल वगैरह कुछ ना कुछ तो आएगा ही कभी ना कभी। तो ये हमने इस तरीके से इसको, इस गैस से अपने बर्नर को कनेक्ट किया और इस बर्नर से हम लोगों ने काफी इससे फायदा उठाया। और अभी बहुत सारे लोग हम लोगों से सीख के इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस बायोगैस का आविष्कार भारत में ही हुआ था, मुंबई में 1840s में। ये बायोगैस इंडिया ने इन्वेंट किया और इंडिया ये कह के इसका यूज बंद कर दिया कि ये बहुत यूजर अनफ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, इसमें काफी स्मेल आता है, इसमें जो बर्नर का जो फ्लेम है वो बहुत कम है, इसमें मतलब बहुत जो जल्दी पकाना है, जो भी थोड़ा डीप पकना है वो नहीं पक सकता है। तो लोगों में ऐसी बहुत सारी चीजें थी। और उसी बीच में मैंने काफी सारे स्टडी किए, एक्सप्लोर किए, तो देखा कि इंडिया में बायोगैस बिल्कुल फेलियर हो चुका है। लोगों ने बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिया है कि अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसी बीच मैंने जब वेस्ट मैनेजमेंट बाहर के कंट्रीज का स्टडी किया तो देखा कि उन्होंने चुपके से इसको अडॉप्ट कर लिया। स्वीडन ने, ब्राजील ने और कई सारे ऐसे जगह इसका एग्जाम्पल है। स्वीडन में आप देखेंगी कि जो वहाँ का जो जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इसी बायोगैस पे चलता है और ये बायोगैस उनको उनके कचड़े से मिल जाता है। ब्राजील का जितना भी, साओ पोलो का जितना भी स्ट्रीट लाइट है, पूरा का पूरा स्ट्रीट लाइट कचड़े से चलता है, कचड़े से एनर्जी निकला हुआ। तो हमारा टेक्नोलॉजी हम उसको हमने छोड़ दिया और दूसरों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से, जुडिशियसली। तो हमको फिर वापस जो कहते हैं कि जो we'll have to come back to the basics once more। हम लोगों को उसी जगह पे जाना पड़ेगा जिस जगह पे हमारे पूर्वज ने आज से 50 साल पहले छोड़ा था। हम लोग को वापस से
खेती में जाना पड़ेगा, वापस से पर्यावरण के प्रति उतना प्रेम रखना पड़ेगा, वापस से अननेसेसरी ट्रैवलिंग बंद करनी होगी और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि अननेसेसरी हम लोगों ने अपने फुटप्रिंट बढ़ा दिया है, जो लोग समझें कि ये बहुत अलग लेवल के लोग हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा काम शुरू कर दिया जिसकी वजह से अगर आप देखें कि फाइनली पर्यावरण को ही नुकसान हो रहा है। तो इन सभी मुहिम से जी देखिए यहाँ पर मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने बोला कि फिर से हमें उस चीज को लाना होगा और सबसे अच्छा तरीका मुझे जो लगता है वो ये कि बच्चों को अगर एजुकेट किया जाए इस फील्ड में, अगर उनके स्कूल्स में, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ा है एनसीईआरटी बुक्स में। मुझे याद है 7th 8th क्लास में हमारे सब्जेक्ट में था ये बायोलॉजी साइंस कुछ ऐसे सब्जेक्ट में बायोगैस प्लांट के बारे में हमने पढ़ी थी। लेकिन सिर्फ पढ़ना इज नॉट सफिशिएंट, हमने बस सुन लिया कि अच्छा गोबर डालते हैं, अच्छा ऐसे खाद बनता है, अच्छा इसके बाद ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। बट जब तक हम उस चीज को अपने बच्चों को प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे कि दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट एंड दिस इज हाउ हम वेस्ट को बेस्ट यूज कर सकते हैं, तब तक हमारे लिए शायद बस एक किताबों में छपी हुई या ऐसे वेबिनार पे या फिर ऐसे बोली गई कहानी ही सिर्फ रह जाएगी। एग्जैक्टली वो कहते हैं ना कि जो इट इज नॉट वेस्ट अंटिल इट इज वेस्टेड। तो इस वेस्ट में जो है, इस वेस्ट को हम आज से वेस्ट कहना बंद करें और इस वेस्ट को आज से हम रिसोर्स कहना शुरू कर दें और आप देखिए कितनी जल्दी ये बदलाव आ जाएगा। और जैसे हम उसको बोलते हैं ना कि जो हम कोई सिग्नल अपने ब्रेन को देते हैं और वो हमको उसी तरीके से चलाना शुरू कर देता है, तो हमने उसको बहुत दिनों से, बहुत सालों से जस्ट कचड़े की नजर से देखते हैं और हमारा तो सपना ऐसा है कि आने वाले दिन में आपके घर से कचड़े की चोरी हो, क्योंकि लोगों को लगे कि उसमें इतना वैल्यू है और लोग आपने अपने घर से बाहर निकाला सुबह डोर टू डोर कलेक्शन के लिए और पता चला कि कुछ देर बाद आपको कचड़ा मिला ही नहीं, किसी ने गायब कर दिया। गायब क्यों किया? तो आपके किचन वेस्ट को ले जाके वो उसके घर में जो एक बड़ा बायोगैस का सेटअप है जिसमें वो कम से कम 10-15 घर के कचड़े को लेके वो उस बायोगैस को डेवलप कर रहा है और उसको महीने का 3-4 सिलेंडर मिल रहा है, तो उसके लिए तो फायदा है। तो उसको तो मालूम चल गया कि जो ये तो इसमें वैल्यू है। अब आपको अगर मालूम नहीं है तो ये तो आपकी गलती है। तो आने वाला समय ऐसा हो, ये हमारी कामना है और इसी तरीके से हम लोग इसमें कुछ ना कुछ करें। So as a waste management expert, I want you to उनको, जैसे कोई गृहिणी अगर आपको सुन रही है या घर में कोई भी सदस्य, ये सिर्फ गृहिणी का ही काम नहीं है, ये हर कोई कर सकता है अपने लेवल पे, बच्चे भी कर सकते हैं। तो ऐसा क्या करें कि बच्चे भी सीखें और उसको नेक्स्ट जनरेशन को फॉरवर्ड किया जाए कि हाँ दिस इज व्हाट वी हैव डन टू सेव आवर एनवायरनमेंट, नाउ इट इज योर टास्क टू डू इट फॉर आवर एनवायरनमेंट ओनली। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए बच्चे, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हम लोगों ने जब मिशन गंगे भी किया था तो हम लोगों ने बच्चों को बहुत ही मतलब हमारा एक क्या बोला जाए कि एक मतलब कि हमारा एक जगह था जहाँ पे कि हम लोग एम था कि बच्चों को तो कनेक्ट करना ही है। उसका कारण ये भी था कि जब हम प्रधानमंत्री के घर पे मिलने गए थे प्रधानमंत्री से, आपको याद होगा, तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री से पूछा था श्री नरेंद्र मोदी जी से जी 4 अक्टूबर 2018 को कि हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग इस तरीके से इस पूरे मुहिम को चलाएंगे और आपका अगर कुछ सोच है तो वो भी हमें गाइड करिए। तो आपको याद होगा कि उसने 2-3 बातें कही थी कि पहले के जमाने में हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करते थे, रिसाइकलिंग किया करते थे और रीयूज किया करते थे। रीयूज इन द सेंस कि जैसे बड़े भाई का कपड़ा छोटा हुआ तो छोटे भाई ने पहना, छोटे भाई का कपड़ा छोटा हुआ तो वो घर का पोछा बन गया। अभी क्या होता है, अभी हम सीधा रिप्लेस करते हैं। कपड़ा छोटा हुआ है या पुराना हुआ या तो डस्टबिन में डाल दिया या नदी के किनारे बहा दिया, और आपने देखा भी होगा कि नदी के किनारे जब हम केवल कपड़ा ही कपड़ा है, पता नहीं लोगों की क्या आस्था है, क्या श्रद्धा है कि वहां पे जब भी पुण्य कमाने जाते हैं तो अपनी गंदगी छोड़ जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली तो बच्चे जब अपने घरों में अपने माँ बाप को कहेंगे कि जैसे कि बोलते हैं ना कि जो बच्चों को अगर स्कूल में बोला जाए कि कल
कम से कम 20 न्यूज़पेपर लेके आना, तो आप देखेंगे 90% बच्चे कल 20 न्यूज़पेपर जरूर लेके आएंगे, क्योंकि वो अगर घर पे नहीं भी होगा तो पड़ोसी से लेके आएंगे वो। तो आजकल बच्चे माँ बाप से ज्यादा टीचर की बात मानते हैं, और ये एक बहुत अच्छा संकेत है। अगर वो टीचर की बात मान रहे हैं तो हम एक टीचर के जरिए एक मतलब कि अगर मान लीजिए सभी स्कूलों में अगर हम वहाँ के स्कूल के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से अगर उन बच्चों को बताएं कि आप अगर इस तरीके से अगर घर में करें तो वो कल को क्या होगा कि वो भी एक इस वेस्ट के लीडर बनेंगे अपने घर के लिए और तमाम तरीके के चीज करेंगे। तो मतलब बच्चों से हमें बहुत उम्मीद है और बच्चे ही इसमें कुछ कर सकते हैं। और आपको एक बात बताते हैं, आज हम जो भी पैसा कमा रहे हैं किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए। और अगर आने वाले समय में अगर हम उनको साफ हवा और साफ पानी अगर हम उनको नहीं अश्योर कर पाए तो वो जो पैसा हम जमा कर रहे हैं ना उसका कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि कितना भी पैसा हो अगर उसके पास सांस लेने को हवा नहीं है, पीने को पानी नहीं है, तो वो पैसा थोड़ी सांस लेगा। जी बिल्कुल, तो आने वाले टाइम में ये बहुत जरूरी है कि हर एक गार्जियन को ये सोचना होगा कि हमें उस तरीके से इस चीज को ध्यान में रखना है कि अपने बच्चों के लिए कम से कम पर्यावरण के लिए अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा तो देना है। नहीं तो क्या होगा कि हर कोई यही सोचेगा कि अरे मिशन गंगे एक टीम है जो कि यहाँ पे काम तो कर रही है ना, बीइंग भागीरथ एक टीम है जो कि हरिद्वार में काम कर रही है, बंच ऑफ फूल्स एक ग्रुप है जो कि रायपुर में काम कर रही है। तो लोग बोलेंगे सब तो काम कर रहे हैं, हमको काम करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर हर कोई अपना पल्ला इससे झाड़ लेंगे तब तो हमारा देश जिस तरीके से हमारा ये पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है तो आने वाले टाइम में बहुत ही अंधकार नजर आता है कि जो सिचुएशन पॉजिटिव। गौरव जी, स्तुति 1 सेकंड। सो हियर आई वाज थिंकिंग कि अगर हम एक तो हो गया हमने जो कम्युनिटी के फ्रंट से बहुत सारी डिस्कशन करी है, राइट, कि कैसे एज एन इंडिविजुअल हम आप सब लोग एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कैसे हम वेस्ट सेग्रीगेशन या फिर वेस्ट मिनिमाइज फर्स्ट ऑफ ऑल जितना कम से कम कर सके उतना कम से कम कर दे, और उसके बाद जो हो रहा है उसको डेफिनेटली सेग्रीगेट करें अपने घर में। एक बायोगैस प्रोडक्शन अगर हो सके, अगर पॉसिबल है तो उसको इम्प्लीमेंट करें। फ्रॉम अ मोर मैक्रो पर्सपेक्टिव, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जो प्लास्टिक टार रोड्स है, तो मैं थोड़ा सा ध्यान वहां पर ले जाना चाहूंगी कि अगर आप उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सके जहां पर प्लास्टिक जनरेट हो रहा है ना, हम लोग पैकेज फूड भी खा रहे हैं, हम लोग बॉटल्स भी यूज कर रहे हैं, तो वो प्लास्टिक को कैसे, वेस्ट प्लास्टिक जो है उसको कैसे हम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, जो आपके एक प्रोजेक्ट में आपने किया है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा हमें बता पाए। देखिए, प्लास्टिक एक बहुत ही वंडरफुल मटेरियल है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज हम ज्यादातर जगह जहाँ पे भी आप प्लास्टिक की बात करेंगे या सुनेंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए, प्लास्टिक से एक्वेटिक लाइफ को बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, प्लास्टिक से नालियां चोक हो रही हैं, मतलब प्लास्टिक हर तरीके से कल्प्रिट है। तो आपको ये बताते हुए मेरे को अच्छा लग रहा है कि जब प्लास्टिक का आविष्कार हुआ था इस दुनिया में तो इसलिए हुआ था कि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत आसानी से आप उसको कई सारे चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने प्लास्टिक पे इतना ट्रस्ट किया, मतलब एक टाइम तक, कि हम लोग उसमें दूध खरीदने लगे। करेक्ट। और दूध खरीदने के बाद हम लोग उसमें, अभी आप देखेंगे हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएं तो एक पेशेंट के इर्द गिर्द जितने भी कनेक्टिंग पाइप्स, जितने भी जहां से ब्लड जिस बॉटल से आ रहा है, जिस बॉटल से पानी उसको चढ़ रहा है, हर कुछ तो प्लास्टिक है। तो हम एक दिन रातों रात कैसे प्लास्टिक को बंद कर सकते हैं? तो प्लास्टिक को बंद करना कोई उसका उपाय नहीं है। ये तो है कि चलो हमने बोल दिया कि बंद कर देना चाहिए, तो ये हमारा इतना ही तक का था, अब हम नहीं जानते भाई। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी 2 मिनट की बताऊंगा कि एक समय था, 2006-7 की बात है, नहीं 2008 की बात है। तो मैं जमशेदपुर शहर में उस समय यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट एक हिस्सा शहर का देखता था। तो वहां पे एक दिन मैं एक
मतलब एक एरिया में गया और वहां पे जाने के बाद एक मतलब आंटी जी जो कि तीसरे फ्लोर पे रहती थी, उन्होंने अपने घर से खिड़की से अपने किचन से कचड़े को पॉलिथीन में बांध के नीचे फेंका और वो एक जगह गिरा और पूरा स्प्लैश होके वो हमारे पूरे बॉडी पे लगा। तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो ये एक ना एक दिन तो होना ही था। तो चलो हो तो गया, लेकिन उसके बाद मेरे को उसमें सबसे ज्यादा जो मटेरियल दिखे, जो सबसे ज्यादा आईसोर थे, वो थे प्लास्टिक। और वो प्लास्टिक अगर आप शहर में किसी भी शहर में मैं जाता हूँ और वहां पे अगर किसी भी फील्ड में या किसी भी ड्रेन में मेरे को 2-3 भी अगर प्लास्टिक दिखता है या किसी को भी दिखता है तो बहुत दूर से ही आपको वो उस सिटी के लैंडस्केप को डॉट करता हुआ दिखेगा कि देखो वहां पे कचरा पड़ा हुआ है। हालांकि केवल 2 पॉलिथीन है, लेकिन आपको लगेगा बहुत कचरा है। तो प्लास्टिक क्या हुआ कि जो कचड़े में इसका बहुत बड़ा योगदान हो गया और ये वॉल्यूमिनस बहुत होता है। तो मैं आपको इस स्लाइड के जरिए बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्लास्टिक सड़क बनता है और प्लास्टिक सड़क की जो टेक्नोलॉजी है वो इतना ही आसान है जितना खाना बनाना। तो मैं आपको इसको खाने बनाने से कंपेयर करके बताऊंगा कि आप सबसे पहले देखिए ये लिटर्ड प्लास्टिक वेस्ट सबसे पहला वाला, ये आपको हर जगह हर शहर में मिल जाएगा। इसके लिए आपको बहुत दूर दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने गेटेड कम्युनिटी से बाहर किसी भी स्लम की तरफ, किसी भी मार्केट की तरफ निकलेंगे तो ये आपको लिटर्ड प्लास्टिक वेस्ट मिल ही जाएगा। और इस प्लास्टिक की वजह से जो मेन चीज है वो क्या होते हैं, ड्रेन चोकेज होते हैं। अभी स्तुति जी जहाँ पे रह रही हैं पटना में, वहां पे कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी और उस बाढ़ का अगर आप रूट कॉज देखेंगी तो इट वाज प्लास्टिक वेस्ट। जगह जगह पे इन्होंने प्लास्टिक ने क्या किया था जी, हर चीज को चोक किया हुआ था। मैं तो अभी भी चोक कर मेंशन करना चाहूंगी जी कि पटना शहर अभी भी नहीं बदला है। ये 2 दिन लगातार बारिश हुई है यहाँ पे और फिर से वही हाल है। ऑलमोस्ट कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कि अभी भी पानी भर चुका है। सो द रीजन इज प्लास्टिक ओनली एंड पीपल आर ब्लाइंडली यूजिंग प्लास्टिक। तो इस प्लास्टिक को क्या करते हैं कि हम लोग पूरे शहर से कलेक्ट करते हैं और इसको कलेक्ट करने का भी अलग अलग तरीका है अलग अलग शहरों में। कुछ लोग इसको खरीदते हैं, मतलब कि रैग पिकर्स को बोला कि तुम मेरे को लाके दो, मैं तुमको 5 रुपए पर किलो का दूंगा। या जैसे कि हाउस होल्ड में ही बोल दिया कि भैया, जैसे आपने कभी डस्टबिन में न्यूज़पेपर देखा है क्या? बहुत रेयरली आप देखेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि इस न्यूज़पेपर का मेरे को वैल्यू मिलने वाला है। महीने के अंत में कोई मेरे से 10 रुपए किलो ये अखबार लेके जाएगा और मेरे को 10 रुपए दे के जाएगा। तो हम, और 10 रुपए का कुछ वैल्यू ही नहीं है। 10 रुपए में ऐसा नहीं है कि आप अपना मकान बना लेंगे। या जी Gaurav ji, I want to mention one thing here. When I was working in वाराणसी, इन चीजों के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था, MC तुला मैम के साथ मैं भी काम कर रही थी। तो वहां पर एक स्कूल है साक्षी, स्कूल में टीचर्स ने बच्चों को ये बोला हुआ है कि तुम अपने अपने घरों से हर सैटरडे को पूरे हफ्ते का पॉलिथीन जमा करके लेकर आओ एंड यू सबमिट इन द स्कूल। तो हर क्लास के हर बच्चे उस पॉलिथीन को इकट्ठा करते हैं स्कूल में अपने घरों से। तो कितनी अच्छी ये इनिशिएटिव है, कहीं से किसी को कुछ करना नहीं पड़ा, बच्चों को ये अवेयरनेस आई कि प्लास्टिक हमें इधर उधर नहीं करना है क्योंकि टीचर ने बोला है। Actually, very interestingly, I would also want to point out here, almost 6.5, 7 years ago, मैंने एक रिसाइकलिंग इनिशिएटिव में मेरा जॉब ही वही था जिसमें 6 महीने 8 महीने मैंने लगाया था। सो द जॉब वाज कि जाकर सबको प्रोपेगेट करना है, एजुकेट करना है, यही प्लास्टिक को कैसे सेग्रीगेट करना है। पेपर, व्हाइट पेपर सेपरेट सेग्रीगेट होगा, ब्राउन पेपर एंड अदर पेपर इज सेपरेट सेग्रीगेशन। बट मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमें आता था कॉर्पोरेट कम्युनिटी से। रेजिडेंशियल एरियाज में हमने काफी कोशिश करी पर उसको इतना एनकरेजमेंट नहीं मिला, इतना ज्यादा प्रोपेगेट नहीं कर पाए। बट वेस्ट सेग्रीगेशन में सिर्फ ये हाईलाइट करना चाहती थी कि कितने टाइम पहले से, 6 साल से पहले तो मैंने पार्टिसिपेट किया था, बट इट गोज बैक लॉन्ग टाइम अगो। बिल्कुल जी। तो मैं इस स्लाइड पे था कि रॉ प्लास्टिक वेस्ट को आप कई तरीके से शहर से कलेक्ट कर सकते हैं।
एक श्रेडर होता है जिसमें कि आप अगर प्लास्टिक को श्रेड कर सकते हैं छोटे छोटे साइजेस में, तो ये जो आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो छठा फोटो है श्रेडेड वेस्ट प्लास्टिक, जब हम इस जगह तक पहुंचते हैं तो आपके जो ये जो प्लास्टिक का जो वॉल्यूम है ये समझ लीजिए 5 से 6 गुना कम हो जाता है। मतलब आपने अगर 6 बोरियां प्लास्टिक कलेक्ट की हुई हैं तो ये श्रेड करने के बाद 1 बोरे में आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया और आपको रखने के लिए, उसको जमा करने के लिए कम जगह चाहिए होंगी। अभी क्या है कि इसी श्रेडेड प्लास्टिक वेस्ट को हम डायरेक्ट रोड में यूज करते हैं मिक्स करने के लिए। और आपको जैसे कि मैं बता रहा था कि ये खाना जो हम बनाते हैं घरों में, उससे बहुत ज्यादा ये मिलता जुलता इसका टेक्नोलॉजी है। कैसे है कि आप जब भी कढ़ाई में, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कढ़ाई को गैस पे चढ़ाया और उसके बाद उसमें सबसे पहले गर्म होने के बाद थोड़ा सा तेल डालते हैं और तेल डालने के बाद कुछ उसमें कट वेजिटेबल्स वगैरह डाल के उसको थोड़ी देर फ्राई करते हैं। फ्राई करने से क्या होता है कि पूरे वेजिटेबल्स में वो ऑयल जो है वो लैमिनेट हो जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। यहाँ पे आप देखेंगी जो सेकंड लास्ट पिक्चर है जिसमें कि एग्रीगेट रखा हुआ है। ये जो एग्रीगेट है जिसमें कि जिसको हम सड़क बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो ये एग्रीगेट क्या करता है कि इसमें हम लोग प्लास्टिक का लैमिनेशन करते हैं। इसको हम लोग हीट करते हैं और उसमें प्लास्टिक को ऐड करते हैं। तो क्या होता है कि उसमें प्लास्टिक ऐड हो जाता है और उसमें पूरा का पूरा वो आप समझ लीजिए ना, कोई भी चीज जैसे कि आपका गेट पास है और जो कि लैमिनेटेड है या आपका आधार कार्ड है, आप उसको बारिश में छोड़ दीजिए, अगर वो प्लास्टिक में लैमिनेटेड है तो उसको बारिश का कोई उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जब केवल कागज होगा तो वो मैसेरेट कर जाएगा। तो उस तरीके से सड़क का अगर आप देखेंगी सबसे बड़ा दुश्मन वो है पानी। और सड़क में हर एक बारिश में क्या होता है कि पॉटहोल्स बनते हैं। तो जब आप प्लास्टिक की सड़क बनाते हैं तो उसमें एक तो आपको पॉटहोल्स बिल्कुल नहीं बनते और सड़क की लाइफ अगर 5 साल नॉर्मल सड़क है तो इसकी लाइफ 10 साल से भी ज्यादा हो जाती है। तो ये हर तरीके से पर्यावरण के लिए बहुत ही बेहतर है। और इसमें हम लोग इसमें अगर आप देखेंगे तो इस रोड को बनाने में एक तरफ जहाँ पे आपको कॉस्ट की भी सेविंग है, क्योंकि आप इसमें मान लीजिए 1 किलोमीटर सड़क बनाते हैं तो 1 किलोमीटर सड़क में नॉर्मली आपको बिटुमेन एक नेचुरल रिसोर्स होता है जिसको हम अलकतरा भी बोलते हैं। तो ये जो नेचुरल रिसोर्स है वो अगर हम 1 किलोमीटर की सड़क बनाते हैं तो लगभग 10 से 11 टन हमको वो बिटुमेन का खपत होता है। लेकिन अगर प्लास्टिक की सड़क बनाते हैं तो हर 1 किलोमीटर में मेरे को 1 टन बिटुमेन की खपत कम होती है। मतलब 1 टन नेचुरल रिसोर्सेज वी आर यूजिंग लेस। तो एक तरफ हम बिटुमेन कम यूज कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा कॉस्ट सेविंग हो रहा है। चूंकि हम बिटुमेन 1 टन का 50,000 रुपए कॉस्ट है तो हमने 50,000 रुपए सेव किए। तीसरी तरफ हमने इन्वायरमेंट को सेव किया। जो प्लास्टिक इधर उधर पड़ा रहता था और जिसको खा के जानवर जानवर मर जाते थे, चिड़ियों में इतना आप देखे होंगे कि जो इन्वायरमेंट पे बहुत ही ऐसे ऐसे पिक्चर्स हैं जो कि बहुत ही अलार्मिंग है, जो कि जैसे कि बर्ड्स के पेट से प्लास्टिक का कुछ निकल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकल रहा है, मतलब जानवरों के पेट से, गाय के पेट से प्लास्टिक की थैली निकल रही है। तो वो जो हम लोगों को कचड़े को बिल्कुल ऐसा बांध के और बिल्कुल इस तरीके से जो कि कोई देख ना पाए कि मेरे कचड़े में है क्या, ये जो प्रथा चली आ रही है थ्रो अवे कल्चर, तो इसकी वजह से हमने प्लास्टिक से काफी पोल्यूट किया है एनवायरनमेंट को। वरना अगर प्लास्टिक को जुडिशियसली हम इस्तेमाल करना सीखें तो प्लास्टिक से कई चीजें बना सकते हैं। प्लास्टिक से फ्यूल बन सकती है, प्लास्टिक से हम सड़क बना सकते हैं, प्लास्टिक से आप ग्रैनुअल्स बना सकते हैं छोटे छोटे, और उस ग्रैनुअल्स से फिर आप बहुत चीजें बना सकते हैं। प्लास्टिक की कुर्सियां बना सकते हैं, प्लास्टिक के कई सारे चीज आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको मिला देंगे सब कुछ को एक साथ तो वो आपको दिखेगा कुछ ऐसा ही, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था, कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपको लगेगा ये तो जी। मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जैसे एक कॉन्ट्रडिक्टरी आर्ग्यूमेंट जो कुछ लोगों ने प्लास्टिक रोड के स्पेसिफिक उसमें उठाया था कि थर्मल डिग्रेडेशन होता है तो उससे टॉक्सिक एमिट होता होगा,
या फिर उधर की सॉइल पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता होगा, उधर की एयर क्वालिटी पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता होगा, ऐसा कुछ उस पर थोड़ा सा? देखिए, दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन, और इसका आंसर मैं देना चाहूंगा आपको ये बोलते हुए कि प्लास्टिक को जब हम बर्न करते हैं 215 डिग्री के ऊपर, तभी उससे जो ये ऑब्नॉक्सियस गैसेस होते हैं, जो भी मतलब टॉक्सिक गैसेस हैं, जैसे डाइऑक्सिन है, फ्यूरॉन है, ये सभी निकलते हैं जो कि हाईली कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो ये 215 डिग्री के ऊपर। लेकिन आप अगर प्लास्टिक रोड बनाने का जो टेम्परेचर देखेंगी, तो ये टेम्परेचर 160 डिग्री तक होता है। तो 160 डिग्री पे हम प्लास्टिक को बर्न नहीं कर रहे हैं, प्लास्टिक को जस्ट हीट कर रहे हैं, ताकि वो जस्ट एक एग्रीगेट में कोटिंग हो जाए, लैमिनेशन हो जाए, दैट्स ऑल। अगर हम प्लास्टिक को बर्न करेंगे तो वो तो प्लास्टिक खत्म हो जाएगा, वो तो प्लास्टिक एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो वो हमारे इसमें मिल नहीं पाएगा। तो प्लास्टिक को हम लोग बर्न बिल्कुल नहीं करते हैं, इसको जस्ट हम हीट करते हैं, ताकि वो इतना ही हीट करते हैं 160 डिग्री पे, ताकि वो एग्रीगेट में लैमिनेट हो जाए। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रही होंगी कि ये मैं इसमें हाथ में प्लास्टिक कटा हुआ लेके, और सड़क के मिक्स में ये जो कन्वेयर बेल्ट पे एग्रीगेट जा रही है, उस पे हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं रॉ, और इसके बाद वो मतलब कि उसमें डायरेक्टली मिक्स होके जो हमारा आ रहा है। और ये पहली सड़क है, ये हम लोगों ने बनाया था 2011 में, 200 मीटर का स्ट्रेच था। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि आज भी ये सड़क ऐसे का वैसे ही है। ये बोर्ड थोड़ा पुराना हो गया है जिसमें लिखा है फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक। और डॉक्टर वासुदेवन को लास्ट ईयर पद्मश्री मिला था, और उसमें भी अगर आप देखेंगी तो उनके पिक्चर के पीछे इसी रोड का फोटो है। नाइस। तो तमिलनाडु में सबसे पहले जी हाँ जी, हाँ जी, जी, तमिलनाडु में शुरू हुआ ये, लेकिन मतलब उतना ये हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाया। लेकिन जमशेदपुर में जब हम लोगों ने शुरू किया इसको, तो हमारा एक ही मकसद था कि इस टेक्नोलॉजी को सिंप्लीफाई करें, ताकि लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। तो हम लोगों ने यहाँ पे रहते हुए आसपास के काफी सारे शहरों में, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे शहरों में, बहुत जगह पे इसको रेप्लिकेट किया। हम लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन हम लोगों ने उससे ये नॉलेज ट्रांसफर किया, नॉलेज शेयर किया, और उनको पूरा सपोर्ट किया, ताकि वो भी अपने यहाँ पे बना सके। और अभी उनको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही आसान है। तो अच्छा, आपकी इन बातों से जी जी आपकी इन बातों से बहुत लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा आई होगी कि हम लोग अपने घरों में जो प्लास्टिक को फेंक देते हैं, जैसा आपने बताया कि जानवर इनको खा जाते हैं या फिर इधर उधर एनवायरनमेंट को पोल्यूट का काम करते हैं, तो क्या सही तरीका है कि सही हाथ में ये प्लास्टिक जाए? क्या हमें इनको रैक पिकर्स को देना चाहिए? क्या हमें सेग्रीगेट करके जो हमारे घर आते हैं सफाई वाले भैया, उनको देना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये देखिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिएगा। आप अपने घर के खिड़की से, जो कि आपके कंपाउंड के बाहर जिससे आप कुछ फेंक सके, तो दूध का जो पैकेट होता है, सुधा दूध और ये सब का पैकेट, आप रात को सोने से पहले केवल अपनी गली में गिरा दीजिएगा, ठीक है? दूसरे दिन आप सुबह उठ के देखेंगे तो आपको वो पैकेट नहीं मिलेगा। दूसरे दिन ऐसा करिएगा कि जो नॉर्मल पन्नियां होती हैं, जो कि आप बाजार में जब कुछ खरीदने जाते हैं तो आपको सब्जी वगैरह के साथ जो मिलता है, तो आप उसको फेंक दीजिएगा। आप 3 दिन के बाद देखिएगा, आपको वो प्लास्टिक वहीं के वहीं मिलेगी। तो इस बात को बोलने का मेरा मकसद एक ही था कि लोगों को पता है कि किस प्लास्टिक का क्या वैल्यू है। और जो पॉल्यूशन, ये जो सबसे बड़ा जो सरदर्द है प्लास्टिक, वो मात्र 3 प्रकार की प्लास्टिक है। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहली जो प्लास्टिक है, वो है कि जो पन्नियां हैं, पॉलीथिन्स हैं। और ये पॉलीथिन्स ऐसा नहीं है कि जो ये 20 माइक्रोन का, ये 30 माइक्रोन का, ये 50 माइक्रोन का, हर एक पॉलीथिन एक तो आपको हर जगह दिख जाएगा, नदियों में दिखेगा, लेक्स में दिखेगा, कचड़े में इसका अंबार लगा रहता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, वो आजकल ये कुछ सालों से, मतलब कि मेरे को लगता है कि कम से कम 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ, ये है मल्टी लेयर्ड फिल्म। जैसे कि बिस्किट का अंदर का कलर कुछ और, बाहर का कलर कुछ और। अंदर में सिल्वरी उसका ये पैक होता है, और बाहर में उसका वो कलर वगैरह जो उसमें ब्रांडिंग किया होता है वो दिखता है। कुरकुरे का पैकेट देखिए, अंदर का कलर बिल्कुल सिल्वरी और बाहर का पैकेट बिल्कुल चकाचक।
तो ये प्लास्टिक बिल्कुल रिसाइक्लेबल नहीं है। अगर आप इसको फेंक देंगी तो कोई भी नहीं उठाएगा इसको। तीसरा जो एक और प्लास्टिक है, आपको मतलब कि बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि थर्मोकोल भी एक प्लास्टिक है और उसका नाम है पॉलीस्टाइरीन। और थर्मोकोल एक बहुत बड़ा जहर है, जो कि हम मतलब कि हम लोग अपने मुहिम के जरिए बहुत सारे स्कूलों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो स्कूल अपने बच्चों को ये कहते हैं कि जो आप प्रोजेक्ट बना के लाइए इन थर्मोकोल की शीट पे, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है कि वो थर्मोकोल पे जब वो एक बार बच्चा कुछ बना लिया और स्कूल में जमा कर दिया, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद तो वो कचरा हो जाता है और उसके बाद वो डस्टबिन में होता है और उस थर्मोकोल का कोई इस्तेमाल फर्दर रिसाइकलिंग नहीं है। तो हम लोग इस तीनों प्रकार के प्लास्टिक को, ये पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीस्टाइरिन को इस पर्टिकुलर सड़क में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा सरदर्द है। और जो 80% प्लास्टिक्स हैं, जैसे कि आपके दूध के पैकेट हो गए, आपके घर में बहुत सारा, जैसे कि कोई पीवीसी का कुर्सी टूट गया, तो वो भी कचरा है। टॉयलेट का जो ब्रश है वो पुराना हो गया, तो हम अगर उसको कबाड़ी वाले को बेचेंगे तो हमको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, 10 रुपया 15 रुपए किलो, तो वो हम बेच सकते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक को हम जमा करें। और ये जो प्लास्टिक है, ये जो आप पन्नियां देख रही हैं और ये जो मल्टी लेयर फिल्म है, इस सब को जमा करके नगरपालिका को ये करना चाहिए, ऐसा मुहिम करना चाहिए, क्योंकि एक इंडिविजुअल के द्वारा चलाया गया मुहिम और उसका सफल होना इतना आसान नहीं है। तो इसमें नगरपालिका को ये करना चाहिए, क्योंकि नगरपालिका को फाइनली आप देखेंगी तो 1 किलो वेस्ट को हैंडल करने में, 1 किलो प्लास्टिक को हैंडल करने में लगभग 8 से 10 रुपए लग जाता है। तो वो अगर उनके पास बिना लोगों को बोले हुए अगर रैग पिकर्स के जरिए और या किसी वेस्ट पिकर्स के जरिए ये लोगों में एक फैलाया जाए, बात फैलाई जाए कि जैसा कि आप न्यूज़पेपर नहीं फेंकते अपने डस्टबिन में, क्योंकि उसको आपको उसका वैल्यू मिलता है, आप 10 रुपए ही बेचें, 8 रुपए ही बेचें, उसी तरीके से नगरपालिका आपसे प्लास्टिक भी खरीदेगी। कृपया प्लास्टिक को डस्टबिन में ना फेंकें और आज से आप प्लास्टिक को जमा करना शुरू करें। और हर महीने के अंत में या हर वीक के अंत में नगरपालिका की कोई सदस्य आएगी और आपसे प्लास्टिक अलग से लेके जाएगी। आप आने वाले टाइम में देखेंगी कि जैसे ही लोगों को आप इसका वैल्यू देना शुरू करेंगे, जैसे ही लोगों को इसके बदले में आप पैसे देना शुरू करेंगे, आपको प्लास्टिक वेस्ट भी सड़कों पे नहीं दिखेगा, बिनों में नहीं दिखेगा। ये बहुत ही नेचुरल जी। मैं यहाँ पर एक पॉज लेना चाहूंगी फ्रॉम टॉकिंग अबाउट लेट्स से प्लास्टिक, एंड वापस ध्यान ले जाना चाहूंगी हमारा जो पहला क्वेश्चन था आईओटी को लेके। हमारे पास एक्चुअली टाइम थोड़ा कम रह गया बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हम फिर से बात करते हैं अभी जमशेदपुर के स्मार्ट सिटी होने की, एंड कैसे आईओटी ने उसमें इतना बड़ा रोल प्ले किया है, उसका क्या रोल रहा जमशेदपुर के इस पूरे टाइटल को अर्न करने में, एंड कैसे। देखिए, आईओटी, सबसे पहले तो आईओटी एक तोप चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, हम लोगों ने तोप बनाया है उसको। आईओटी क्या है? आप आज देखिए, आप घड़ी पहनती हैं एप्पल का, आप मतलब बहुत सारे ऐसे गैजेट हैं, कुछ गैजेट वेयरेबल हैं, कुछ गैजेट है जिससे कि आपको आपने सेंसर कहीं पे लगा दिया और आपको उस सेंसर से आपको पता चल रहा है कि आपके हवा में कितना PM 2.5 है, PM 10 कंसंट्रेशन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे फिजिकली जाना पड़े और आपने वहां पे मेजर किया तभी आपको पता चले कि इसका कितना अभी पर्यावरण कितना प्रदूषित है, नॉइज का लेवल क्या है। तो ये आप अगर मिला जुला के देखेंगे तो सब कुछ ये पर्यावरण से ही जुड़ा है, ये नॉइज, ये एयर, ये वाटर, ये वेस्ट। तो हम लोगों ने क्या किया कि, और हम लोग की जो कंपनी है वो बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ही काम करती है, मतलब पब्लिक एमिनिटीज कह दे, आपकी यूटिलिटीज और सर्विसेज एक शहर के लिए जितनी भी होती हैं, हम लोग उस पे काम करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये जितने भी इस टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे जितने भी विभाग हैं, इसमें क्या ऐसा करें कि जिससे ये हमारे काम में थोड़ा स्मार्टनेस आए, न कि वो एक फैंसी आइटम हो। आईओटी आजकल एक फैंसी आइटम है। जैसे कि दीपावली के टाइम में आप चाइना के लाइट को 20 रुपए का एक पूरा का पूरा लड़ी खरीदते हैं और अपने घर में दीपावली में 2 दिन के लिए आपने लटका दिया और 20 रुपए में आपके घर पूरा जगमग हो गया। और अगले साल आप जब उसी लाइट को निकालेंगी तो आपको मालूम नहीं कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा।
तो आपका एक बार का जो आइटम है वो अगले साल कचड़ा हो गया। तो आईओटी उस टाइप का चीज नहीं होना चाहिए, उसके चलते उसके लिए हम लोगों ने काम किया। तो इसमें देखिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है नेटवर्क। नेटवर्क बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि आपने ये जो हम लोग वायर्ड नेटवर्क है, दूसरा है जैसे कि ये जितने भी मोबाइल के 4G 3G 2G नेटवर्क्स हैं, ये है। एक नेटवर्क है जिसको हम लोग बोलते हैं सिगफॉक्स, एक नेटवर्क है जिसको हम लोग बोलते हैं जिगबी, एक नेटवर्क आपके मोबाइल में है जिससे कि आप अपने डिवाइसेस को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हैं, वो भी नेटवर्क है। एक नेटवर्क है जिसको कि आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं। तो ये नेटवर्क, तो क्या होता है आईओटी में, आईओटी एक बोलते हैं ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कई लोग बहुत सारी कंपनी का इसका जो परिभाषा है वो अलग अलग है। प्राइस वाटर कूपर हाउस बोलती है आईओटी ये होता है, एक्सेंचर बोलती है आईओटी होता है कि इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, आईओई, जो हर चीज को आपने कनेक्ट किया और एक डैशबोर्ड पे आया और वहां से यू आर एबल टू मैनेज इट। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे नेटवर्क एक बहुत बड़ा इशू था। अगर आप सोचिए ना, अगर आप अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन करती हैं तो आपके मोबाइल की बैटरी हार्डली 6 से 7 घंटे में पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा। आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपने एक सेंसर एक डस्टबिन में लगाया है और आपको हर दिन जाके पावर बैंक लेके उस कचड़े के डब्बे में जाके उसको चार्ज करना पड़ रहा है। तो ये आईओटी कैसा आईओटी है? बिल्कुल बकवास है। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि क्या करना उसमें इंप्रूवमेंट लाने के बराबर होगा और क्या करना बस एक फैंसी आइटम होगा, दूसरे को दिखाने के लिए होगा। तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हम लोगों ने पानी, बिजली और कचड़े, ये 3 एरिया को चुना और इसमें हम लोगों ने देखा जैसे कि कचड़ा में क्या है कि जितने भी म्युनिसिपल व्हीकल्स हैं, अगर आप उसमें व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाती हैं तो उससे क्या होता है कि हर शहरवासी, अगर आपके घर में कोई डोर टू डोर कलेक्शन हर रोज 8 बजे सुबह तक हो जाता था और अभी तक अगर 10 बज चुका है और अभी तक कोई नहीं आया है, तो आप मोबाइल ऐप पे देख सकती हैं कि वो व्हीकल वहां से निकला भी है या नहीं निकली है, या यहाँ पे पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, या आज का ड्यूटी है भी या नहीं है। तो ये तमाम तरीके के चीज जो हैं वो आप वहां पे जब डिवाइस लगाएंगी, और उस डिवाइस को हम बोलते हैं नोड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कई सारे नोड्स एक स्मार्ट सिटी में अलग अलग जगह पे लगाने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर के अंदर में, हम आपके घर का एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में एनर्जी मीटर होगा, आपके घर में वाटर मीटर भी होगा, आपके घर में कई सारे नल होंगे, फॉसेट्स होंगे जिससे आप पानी इस्तेमाल करती होंगी। तो आपको ये मालूम नहीं है कि आप पानी महीने में कितना इस्तेमाल करती होंगी, और तो आपको बिल देने के टाइम पे मालूम चलता होगा। लेकिन अगर आपको ये मालूम चले कि इस 24 घंटे में ये जो 8 बजे सुबह से लेके 9:30 बजे तक का समय है, इस बीच में मैं 80% पानी इस्तेमाल करती हूँ, तो आप क्या करेंगी? यू विल जस्ट आप सोचेंगी कि कैसे हम केवल उस 8:30 से 9 के 8 से 9:30 बजे के बीच के एक्टिविटी को मैं फोकस करूं, एंड आई विल थिंक कि कहां पे मैं पानी यूज करना कम कर सकता हूं या कर सकती हूँ। अदरवाइज अगर आप उस डेटा को देखेंगे आईओटी के कि भैया हम महीने में इतना पानी खर्च किए और मेरा बिल आया 980 रुपया, इससे आप किसी इंसाइट पे नहीं पहुंचेंगी। सेम गोज फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर में, एनर्जी मीटर में, इफ योर एनर्जी मीटर इज अ स्मार्ट मीटर, इफ वी कॉल अ मीटर स्मार्ट, उसका बहुत सारा पहलू होता है कि सबसे पहले तो आपके घर में कोई बंदा ना आए कि जो ये आप मेरे को महीने के अंत में एक रीडिंग लेनी है ताकि आपको हम बिल दे पाए। तो अभी कोरोना के जो ये लॉकडाउन के टाइम में अब ये भी बहुत ज्यादा नया नॉर्मल नहीं होगा, आप किसी को अपने घर में आने देंगी बिजली बिल के लिए वो रीडिंग करने के लिए। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि एनर्जी मीटर अगर आपका स्मार्ट हो तो उसके जरिए भी आपको ये पता चल सकता है कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन का पैटर्न क्या है, मैक्सिमम पीक कब है, लो कब है। तो आप हो सकता है कि जो आपको दिख रहा है कि ये 7 बजे से लेके 8 बजे तक का टाइम पीक है, तो चलो ऐसा करते हैं कि 7 बजे से 8 बजे तक के टाइम में आधा घंटा हम वॉक कर लेते हैं। आप अगले महीने से देखेंगे कि आपका बिजली बिल आना कम शुरू हो गया। तो आईओटी
तभी फायदेमंद है जब उसका फायदा आपके जेब पे है, न कि दूसरे को दिखाने के लिए। और बहुत सारे शहरों में मैंने भारत में देखा है कि इसमें लोग मतलब कि फैंसी आइटम पे ज्यादा ध्यान देते हैं लोगों को दिखाने के लिए। और लास्ट टू लास्ट ईयर मैं लंदन गया था, एंड देयर आई रिप्रेजेंटेड इंडिया डिजिटलाइजेशन के लिए, और वहां पे मैंने इस सब चीजों पे बात किया कि कैसे हम लोग एक शहर को इस तरीके से स्मार्ट बनाने की और काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग पानी में, रिवर, लेक्स में, वाटर बॉडीज में, वहां पे एक सेंसर लगाया हमने, और उस सेंसर के जरिए हमको हमेशा मालूम होता है कि हमारे पानी में कितना डिसॉल्व ऑक्सीजन है, हमारे पानी का पीएच वैल्यू क्या है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा गया वहां पे सैंपलिंग किया, सैंपलिंग करने के बाद फिर उसको पता चल रहा है कि अच्छा ये है, अच्छा इसमें ये करेंगे। तो ऑल दी डेटाज रिलेटेड टू, हो सकता है कि आपकी पार्किंग, आप मॉल में जा रहे हो, आपके पास एक ऐप हो, और आप जैसे ही मॉल में एंटर करें आपको पता चल जाए कि पार्किंग स्लॉट 37 इज एम्प्टी एंड आई शुड गो एंड पार्क माय व्हीकल देयर, इंस्टेड ऑफ कि भैया कहाँ पे पार्क करना है, थोड़ा मेरे को दिखा दीजिए। तो आईओटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ सेंसर है, सब कुछ ग्रीन, रेड, येलो सब जगह चल रहा है, लेकिन फाइनली मेरे को आगे पूछना पड़ रहा है। तो आईओटी का जो समझ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें काफी सारे सोच में हम लोगों को एक अलग थोड़ा चेंज करने की जरूरत है कि जो हम आईओटी में उसी चीज को आईओटी में कन्वर्ट करें, उसी चीज को हम कनेक्ट करें जिससे वाकई में हमको एक ऐसा इंसाइट मिले और जिससे पर्यावरण का लाभ हो और आने वाले टाइम में हम कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके, तभी। अदरवाइज इट विल बी अ फैंसी आइटम। I think some actionable item निकलना चाहिए of the insights that you're drawing. आपने implement कर दिया, आपने cost incur कर दिया, अगर आप उससे कुछ action नहीं drive कर पा रहे हैं, then it's of no point. Then it's just a show business stuff. Yeah, बिल्कुल। Yes, Stuti, you wanted to say something. अच्छा गौरव, हाँ, अभी मैं उनसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप यंग प्रोफेशनल्स को क्या एडवाइस करेंगे गौरव? देखिए, यंग प्रोफेशनल्स जो है आजकल के बहुत स्मार्ट हैं, और हम उनको मतलब कि अगर मौका मिले तो अभी भी मेरा एक शौक है कि मैं काफ़ी मेंटरिंग में काफ़ी यकीन रखता हूँ, और बच्चों के साथ मिलके मैंने आईओटी में जो भी सीखा है, आप सोचिए मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ और मैंने आईओटी पे काफ़ी काम किया है, और इसमें पूरा का पूरा योगदान मेरे स्टूडेंट्स को जाता है। मैंने इस 4-5 सालों में काफी सारे बच्चों को ट्रेनिंग दिया है, और ट्रेनिंग का सब्जेक्ट आईओटी ही होता था। मेरा मकसद यही था कि, और वो जो स्टूडेंट्स होते थे वो लोग सभी कंप्यूटर के बैकग्राउंड के होते थे। मेरा मकसद यही होता था कि पहले मैं पढूं, फिर उनको सिखाऊं, फिर उनसे आइडिया मेरे पास आता था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसमें क्या काम करना है, ये उन बच्चों को ज्यादा मालूम होता था। तो मैं उन बच्चों को कुछ चैलेंजेस देता था, और उन बच्चों के साथ उस पे काम करके मैंने धीरे-धीरे उन्हीं से सीखा है ये सारा का सारा आईओटी। और आज मैं मतलब कि मैं गैजेट का बहुत बड़ा फैन हूँ। इंडिया में जब फिटबिट नहीं आया था, इंडिया में आने के 1 साल पहले से मैं फिटबिट यूज करता था। इंडिया में एप्पल का जितना भी आप गैजेट देखते होंगे, 7-8 उसका जो ये सेगमेंट्स है, मैं ये शुरू से जब मार्केट में आता है तब से मैं यूज करता हूँ। मेरा इतना उसमें रुझान है, और मैं अगर मेडिकल साइंसेस के भी कुछ गैजेट्स देख लूं, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है और ब्रेन के वेव को मेजर करने का मशीन है, तो पता नहीं मेरा मन करता है कि मैं भी उसमें कुछ करूं। और मैंने अपने घर में जब मेरी एक छोटी सी बेटी थी, अभी तो 2 बच्चियां हैं, तो मैं अपने घर का एक हिस्सा लैब बनाया हुआ था, और मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। तो आने वाले जो मतलब कि जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, मैं उनको 5 मूल मंत्र देना चाहूंगा कि फोकस ऑन ENQOA। E इज एक्सपेरिमेंटिंग, आप जो भी चीज देखें उसमें एक्सपेरिमेंट करें। दूसरा है नेटवर्किंग, N, कि आप नेटवर्क करें, और नेटवर्क करने से आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री ने बहुत कुछ कर रखा है, बहुत सारे इंडिया के सिटीज ने ही बहुत कुछ ऐसा कर रखा है जो कि आप अपने सिटी में रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो आप एक अच्छा नेटवर्क बनाएं। तीसरा है ऑब्जर्व। हम लोग ऑब्जर्व करना भूल गए हैं। हम लोग मतलब कि बोलते हैं ना कि किसी से बिना कुछ सुने उसका हम जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो कोई अगर कुछ पूछता है तो हम उसको बोलते हैं अच्छा रुकिए मेरे पास इसका जवाब है। भैया पहले पूरा सुन तो लो। तो ऑब्जर्व करना शुरू करिए।
जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो इस कॉन्फ्रेंस रूम में, इस रूम में 3 पंखा चल रहा है, 2 एसी चल रही है, 3 लाइट जल रही है, ये मिला-जुला के पूरा इतना बिजली कंज्यूम कर रहा है। इस बिजली को अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स से चलाएँ, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो ये जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक आप किसी नतीजे में नहीं पहुँचेंगे। आप बोलेंगे, "अच्छा ठीक है, एक एसी बंद कर दो।" कोई फ़ायदा नहीं है। फिर दूसरा आएगा, वो तीनों एसी चला देगा। फिर तीसरा आएगा, वो कुछ और करेगा। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, ये आप ऑब्जर्व करने के बाद ही उस पे कर सकते हैं। तो ये हो गया, एक हो गया एक्सपेरिमेंट, एक हो गया नेटवर्किंग, तीसरा हो गया ऑब्जर्विंग, चौथा है क्वेश्चनिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगी, अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो आप एक जैसे बोलते हैं ना कि जो एक जगह ठहरा हुआ पानी है और उस ठहरे हुए पानी में क्या होता है? डेंगू होता है और कई सारी बीमारियाँ होती हैं। वो बाँस मारना शुरू कर देता है पानी। तो हम उसी ठहरे हुए पानी की तरह हो जाएँगे अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। और जो सबसे लास्ट है, वो है एसोसिएशन। ये जो 5 ट्रेट्स हैं, ये अगर हर कोई डेवलप कर ले, तो ऑटोमैटिकली इस 5 ट्रेट को डेवलप करने के बाद आदमी या किसी भी बच्चों में क्रिएटिविटी तो कूट-कूट के भर जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है। और दूसरी बात ये है कि एक बार अगर उसमें क्रिएटिविटी आ गई, तो वो बहुत कुछ कर सकता है और आने वाले टाइम में हम लोगों को उनसे बहुत ही ज़्यादा अपेक्षा है कि जो हम लोग तो अपने रहते तो इस दुनिया के लिए बहुत कुछ नहीं करके जा रहे हैं। तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो हमारे जो आने वाले जनरेशन है, हम लोगों से कुछ ज्ञान लेके और हम लोगों के साथ कुछ चीज़ों पे बोलते हैं ना कि कोलैबोरेट करके, साथ मिलके काम करके और फिर अगर कुछ पर्यावरण को दे, तो मेरे को लगता है कि द वर्ल्ड कैन बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन उस तरीके से। एब्सोल्युटली। आई थिंक आपने जी। जितनी भी एडवाइस दी एंड ऑल द नॉलेज, पूरा एंटायर सेशन बहुत ही इंटरैक्टिव रहा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें ग्रास्प करने को मिला। आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स भी है आज की डेट पे, तो वो मैं ज़रूर इसमें से जाने कुछ। से पहले हाँ जी। जी, मैं जाने जी, से जी। पहले एक शेयर करना चाहूँगा सिटी डेटा 2 मिनट के लिए। यस। जस्ट मैं लोगों को एक फ़ील देना चाहूँगा कि बहुत लोग बहुत सारे दूसरे-दूसरे शहरों से इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। तो वो लोग भी कुछ अपने शहर के लिए अगर सोचना चाहते हैं, तो उसमें एक वेबसाइट है dataforcities.org। इसमें अगर आप ये स्लाइड दिख पा रहा है ना? हाँ, लोड हो गया। जी। जी, तो इसमें आप नीचे देखेंगे कि एक्सप्लोर डेटा पोर्टल है। आप उसको जैसे शेयर करेंगे एक्सप्लोर करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें ये एक आईएसओ सिस्टम है, आईएसओ 37120 और इस पूरे सिस्टम में कुछ इंडिकेटर्स हैं, जो कि एक सिटी के लिए होते हैं और उस इंडिकेटर पे अगर आप इम्प्रूवमेंट लाएँगे और देखिए अभी आपके सामने बहुत सारे शहरों का एक पूरे दुनिया के मैप पे खुल गया होगा। इसमें इंडिया की काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, अहमदाबाद है, जमशेदपुर है, विजयवाड़ा है, संघाई है, दुबई है, सूरत है, पुणे है, मतलब कई सारे ऐसे सिटीज़ हैं, जिसको कि आप सपने में जैसे कि आप चाहते होंगे कि जो हैदराबाद का कंपेयर हम एक बार लंदन से करके देखते हैं, कैसा है? तो आप किसी भी सिटी में जिसको आप कंपेयर करना चाहते हैं, उस पे क्लिक करिए, जैसे कि मैंने अभी अहमदाबाद पे क्लिक किया। अब अहमदाबाद का ये 100 इंडिकेटर पे जो वैल्यूज़ है, वो वहाँ पे जैसे कितना फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स है, देखिए इसमें कंसंट्रेशन क्या है। अभी आप इसमें चाहते हैं कि अहमदाबाद को हम अपने दूसरे सिटी से एम्स्टर्डम से कंपेयर करें, तो इसी स्लाइड में आप एम्स्टर्डम को ले सकते हैं। इसी साइड में आप तीसरे सिटीज़ बॉस्टन को ले सकते हैं और एन नंबर ऑफ सिटीज़ यू कैन ऐड ओवर हियर एंड इन वन क्लिक यू कैन सी कि अभी जैसे देखिए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन सर्वाइवल रेट। आप देखिए अहमदाबाद में दिस इज समथिंग ये 60% के लगभग होगा। उसी तरीके से आप देखिए एम्स्टर्डम में बहुत अच्छा है, बॉस्टन में भी बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि अहमदाबाद को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है एम्स्टर्डम और बॉस्टन से, जहां तक कि इस पर्टिकुलर इंडिकेटर का सवाल है। तो ऐसे 100 इंडिकेटर्स हैं इसमें और इस 100 इंडिकेटर्स पे अगर हम लोग हर एक सिटी अपने आप को बेंचमार्क करे, तो भी स्मार्ट सिटी के ओर चलने के कदम तरफ हम लोग पहला स्टेप ले पाएंगे। वरना क्या होगा कि हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, कभी बोलेंगे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कभी बोलेंगे स्मार्ट विलेज बनाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे।
तो अगर हम लोग तरीके से जाएं तो मेरे को लगता है कि हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। आई थिंक जी काफी तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें बहुत सारे हमारे जो मेट्रोपॉलिटन है वो नहीं लिस्टेड दिखे। कुछ कुछ सिटीज ही है अभी इंडिया जी में जो लिस्टेड है। एंड बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अच्छा होगा देखना जैसे जैसे एवरी ईयर with each passing year if we see more cities up there and we can compare. I think that brings us to the last bit of it. Anything else that you want to add over here, Okay. Stuti? I wanted to know about एक टर्म सुना था इकिगाई, उसके बारे में अगर आप मुझे थोड़ी सी जानकारी दे दें, बहुत मुझे भी बहुत इंक्विजिटिवनेस है इस चीज को जानने के लिए कि आप जी जी मैं इकिगाई एक एक्चुअली मैं मतलब कि अगर हम लोगों ने इतना समय लिया है तो 10 मिनट 15 मिनट लोगों का और भी लेते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए क्या है ना कि दुनिया में हम क्यों हैं, हम चाहते हैं कि कुछ और दिन जिए और इस दुनिया में हम जितना लंबा से लंबा समय तक रह सकें वो हमारे लिए उतना ही अच्छा लगता है। तो इकिगाई का मतलब होता है पर्पस ऑफ लाइफ, कि आपके जिंदगी का पर्पस है क्या, कि बस ऐसे ही आए और चले गए। जो नाना पाटेकर का एक डायलॉग था कि क्यों आए मालूम नहीं, क्यों गए मालूम नहीं, बस जिए जा रहे हैं, कीड़े की तरह रेंग रहे हैं, बस रेंगने की आदत सी पड़ गई है। तो वो माहौल ना हो उसके लिए हम लोगों ने जस्ट मैं एक शेयर करता हूं आपके साथ कि इकिगाई हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। और ये आता है दो कम्युनिटी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। मैं चाह रहा था कि उसको मैं आपको दिखाऊं। ये दो कम्युनिटी हैं। एक कम्युनिटी का नाम है हुंजा। हुंजा के बारे में आपने सुना होगा। ये हुंजा कम्युनिटी है पाकिस्तान और गिलगिट के बीच में है, मतलब कि पाकिस्तान के आसपास ही है। और इस कम्युनिटी का जो सबसे खासियत है वो ये है कि यहाँ के जो लोग होते हैं, बहुत लोग 120 साल से भी ज्यादा जीते हैं। और सेम जो चीज है वो आपके दूसरे शहर जापान में एक जगह है जिसका नाम है ओकिनावा। वहां पे भी इस तरीके का ये होता है। तो अभी ये स्लाइड आप देख पा रही है? हाँ जी। ये स्लाइड खुला हुआ है। तो दो ये कम्युनिटी है, ओकिनावा एंड हुंजा। तो ओकिनावा जो है ये इधर है दाईं तरफ, ये जापान के पास, जापान से काफी पहले है, जापान का ही हिस्सा है। और एक तरफ हुंजा वैली जो है ये आपके पाकिस्तान और इंडिया के लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। तो ये दोनों जगह की खासियत ये है कि लोग काफी यहाँ पे ज्यादा दिन तक जीवित रहते हैं और ये बिल्कुल हेवन है। आप देखिए 125-130 साल की लेडी और बिल्कुल स्वस्थ है, और अभी भी ये 20 साल और जीना चाहती है। ये देखिए, they never get sick, live up to 120 years, here is their secret। तो इस तरीके से ऐसे कौन नहीं जीना चाहेगा। तो मैंने सोचा कि इस लॉकडाउन के दरमियान कि जस्ट चेक कि क्या है जो इनको इतने दिनों तक जिंदा रखता है और क्या है जो इनके लाइफ के पर्पस को पूरा का पूरा बताता है। तो वो जो है वो बिल्कुल एक सिंपल चीज है, वो है इकिगाई। इकिगाई में सबसे पहले आप देखेंगे सबसे ऊपर में जो है व्हाट यू लव। आप पहले मैं सभी युवाओं को भी बोलना चाहूंगा, आप इस 4 चीजों पे काम करिए। व्हाट यू लव, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट कैन यू बी पेड फॉर, एंड व्हाट यू आर गुड एट। तो जब आप ये देखेंगे कि व्हाट यू लव, जैसे कि हो सकता है कि कोई गार्डनिंग किसी को बहुत पसंद है, किसी को गिटार बजाना बहुत पसंद है, किसी को एंकरिंग बहुत पसंद है, तो किसी को खाना कुकिंग पसंद है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो कि आपको यू वुड लव। तो आप यहाँ पे व्हाट यू लव के जगह पे वो कुछ कुछ पॉइंट्स 3-4 आप बनाइए, उसमें लिखिए। उसके बाद आप देखिए कि जो आपको पसंद है और व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, कि दुनिया को भी उसकी जरूरत है। तो इसको, ये दो चीज के बीच में आपको आपका मिशन मिल जाएगा कि आपको भी पसंद है और दुनिया भी चाहती है कि ये हो। तो यही आपका एक मिशन स्टेटमेंट हो जाएगा। दुनिया जो चाहती है, अगर आपको उसके बदले में पैसे मिल जाते हैं, अगर आपको पैसे मिल सकते हैं, तो वो आपका पेशा बन सकता है, वो आपका वोकेशन बन सकता है। और तीसरा है, जब आपको किसी चीज के लिए पैसा मिल रहा है और आप उस चीज पे बहुत अच्छे भी हैं,
तो वो आपका प्रोफेशन बन जाता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा ये चारों सर्कल आप देख रही हैं, चारों सर्कल जो इंटरलिंक हो रहा है, और उसमें आपको आपका मिशन, आपका वोकेशन, आपका प्रोफेशन, आपका पैशन मिल रहा है। और इसमें देखेंगे कि जो व्हाट यू आर गुड एट, आप जिस चीज पे बहुत अच्छे हैं और उस चीज को आप प्यार भी करते हैं, तो वही आपका पैशन है। तो इस तरीके से क्या है कि जो आपको आपके द्वारा एक छोटे से एक्सरसाइज, आप अपने एक व्हाइट शीट निकालिए और उसमें अपने इकिगाई को, मेरा एक फेसबुक का भी एक लास्ट 1 महीने पहले मैंने एक पोस्ट डाला था, जिसको कि मैंने काफी एलाबोरेट वे में इसको मैंने डिस्क्राइब किया था। तो अगर आप उसको भी देखेंगे तो अपने इकिगाई को डिजाइन कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए, एक बार आपको आपका इकिगाई मिल गया, मतलब एक बार आपको आपके लाइफ का पर्पस मिल गया, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा दिन तक इस दुनिया में रहने वाले हैं। आप देखेंगे जापानीज जो हैं वो हमेशा अपने आप को एक्टिव रखते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ये एक्टिव रहना, उनका एवरेज लाइफ अगर पूरे जापान कंट्री का देखेंगे तो इट इज अराउंड 86 और 85 सॉर्ट ऑफ एवरेज। तो मतलब कहीं ना, और इसमें पीछे में जब मैंने और भी इसको एक्सप्लोर किया तो देखा कि दे यूज ओनली ऑर्गेनिक कंपोस्ट, नो पेस्टिसाइड, नो इंसेक्टिसाइड, एवरीथिंग ऑर्गेनिक। वो लोग अपने सेहत पे ध्यान देते हैं, वो लोग अपने दिनचर्या पे इस तरीके से ध्यान देते हैं, हर रोज एक्सरसाइज करते हैं और तमाम तरीके के चीज करते हैं, जो कि आजकल हम लोग इंडिया में रह के ये बोलते हैं कि अभी तो जमाना पूरा डिजिटलाइजेशन का हो गया है, इसलिए अभी थोड़ा हम ये कर रहे हैं, थोड़ा वो कर रहे हैं। तो वो लोग इतने ज्यादा डेवलप होने के बावजूद इन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को कौन नहीं जानता है। तो जब वो लोग इतना इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं। जब आपको इतना दिखाई रहा हूं, तो मैं सोचा कि मैं थोड़ा अपने इकिगाई के बारे में बताऊं आपको। तो अपने इकिगाई की खोज में हम लोगों ने मिशन गंगे शुरू किया था, जिसमें स्तुति भी हमारे साथ थी। तो उसका ये कुछ स्लाइड है, जिसमें ये जो आप देख रही होंगी, गंगा वाटर क्वालिटी एट ऑल लोकेशंस, ये सभी हम साथ में लेके गए थे, ताकि जगह जगह पे वाटर की क्वालिटी को मेजर कर पाए। हम लोगों ने कई जगह पे इस तरीके का भी अनुभव किया। और ये स्वच्छता पुकारे, ये हमारा इनिशिएटिव अभी जमशेदपुर में जो चल रहा है, उसमें हम लोग शहर के कई लोग, और ये काफी दिनों से हम लोग कर रहे हैं। और इसमें काफी अच्छा हम लोगों ने, इसमें आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 5 साल से लेके 85 ईयर्स तक के लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ गए हैं, बच्चे बूढ़े सभी। और इसमें मेरा ये बिल्कुल नहीं है। और इसमें आप देखेंगी, हर कोई इस पिक्चर में, आप जितने लोगों को देख रही हैं, हर कोई लीडर है और हर कोई पूरा का पूरा आजाद है खुद से कुछ करने को, खुद से कोई डिसीजन लेने को। और इसमें देखिए कि एक बच्चा भी है, बच्चे भी पेड़ लगा रहे हैं। तो इस तरीके की मुहिम हम लोग अभी पहले महीना का एक बार शुरू किया था, अभी हर एक वीक हम लोग इस तरीके की मुहिम करते हैं। और कल भी हमारा सुबह सुबह 6 बजे नदी के घाट पे एक मुहिम है, जिसमें कि बहुत सारे लोग जो कि अभी देख रहे हैं फेसबुक लाइव पे, वो लोग भी हमसे जुड़ने वाले हैं कल सुबह सुबह। तो इस तरीके का बहुत सारा मुहिम क्या हम लोग। तो लास्ट में हम ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने 1809 में कहा था कि इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स, नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट, जैसा कि ह्यूमन बीइंग है, बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। और एक और संदेश है कि पता नहीं मेरा खत्म क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कि वेस्ट के मामले में आपने कहा, तो इसमें 5 आर को फॉलो करें। एक है कि रिफ्यूज व्हाट वी डू नॉट नीड, बहुत चीजें हमको नहीं चाहिए होती है, फिर भी हम रिफ्यूज नहीं करते, हम बोला ठीक है दे दो, हम इसको जमा कर लेंगे। दूसरा है रिड्यूस व्हाट वी डू नीड, जो हमको चाहिए ही चाहिए उसको थोड़ा कम करिए। रीयूज व्हाट वी एक्चुअली कंज्यूम। रिसाइकल व्हाट वी कैन नॉट रिफ्यूज, व्हाट वी कैन नॉट रिड्यूस एंड व्हाट वी कैन नॉट रीयूज। और आपके किचन से जितना चीज निकलता है आप उसको रॉट करिए, मतलब उसको खाद में कन्वर्ट करिए। तो आप देखेंगे कि जो ये पोस्ट कोविड, जब प्लैनेट हमारा पूरा का पूरा एक टेम्पररी हॉल्ट पे आ गया है, और बिल्कुल अभी तक हमने जितने भी हार्म पहुंचाए थे इस पूरे इन्वायरमेंट को, और उसी का खामियाजा हमको मतलब कि भुगतना पड़ रहा है। और हम लोग अभी थोड़ा सा अगर इस पे ध्यान देंगे तो आने वाले टाइम में हम लोग काफी बढ़िया से उभरेंगे। और आने वाले टाइम में हम लोग
एक एक इंडिविजुअल अगर कम वेस्ट जनरेट करें और कम अपना फुटप्रिंट रखें तो काफी अच्छा होगा। तो बस यही मेरा कहना था और इन्हीं सब छोटे से मतलब चीजों के साथ मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा कि मैं लोगों के पास अपने विचार को रख पाऊंगा, क्योंकि विचार ही है जो कि आगे बढ़ता है। आज हम स्वामी विवेकानंद को या रामकृष्ण परमहंस को या महात्मा गांधी को इस वजह से नहीं जानते कि उनके पास 6-7 मर्सिडीज गाड़ियां थी या उनका बड़ा बड़ा अपार्टमेंट था। बस इस वजह से जानते कि उनके विचार ऐसे थे जिसको कि आज भी हम फॉलो करते हैं। तो उस तरीके से हम हमारी जो जनरेशन है अभी, विचारों पे ज्यादा फोकस करें, डिसिप्लिन पे ज्यादा फोकस करें, हमेशा एक्टिव रहें, अपने फूड हैबिट्स पे काम करें, अपने टाइमलीनेस पे काम करें, अपने डिसिप्लिन पे काम करें, तमाम चीजों पे काम करें। और इस तरीके का वायरस जो है, दिस विल कीप ऑन स्ट्राइकिंग अस विथ मोर फ्रीक्वेंसीज एज अर्लियर। आप देखे होंगे कि पिछले 20 साल में कितने सारे वायरस आए, जीका आया, स्वाइन फ्लू आया, हर साल। अभी लास्ट 1.5 हफ्ते में 2 आपके ये एक अम्फान आया, तूफान, एक निसर्ग आया। तो ये मतलब ऐसा है कि ये तो चलता रहेगा। बस हमें अपने आप को थोड़ा एजुकेट करना है, हमें अपने आप को इस तरीके से बनाना है कि ताकि हम अडॉप्ट कर पाए टू रेजिस्ट any changes which is caused by these particular pandemic or viruses or any mahamari or anything. So this is all from my side. Over to you. Yeah, Thank I you. think thank you so much. किन्हीं को अगर कोई प्रश्न, मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट क्वेश्चंस आ भी रहे बहुत सारे और बहुत सारे क्वेश्चंस रह भी गए। मैं यही सोच रही थी गौरव जी का खत्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे क्वेश्चंस ही खत्म नहीं हो रहे। वंडरफुल सेशन एंड वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत कुछ सीखने को मिला। It's all my pleasure. I'm always there. Sakshi. Sorry. Yeah, no, I completely agree with Stuti. I think the entire session was very good. यहाँ पर तो messages आ ही रहे हैं, even personal messages आ रहे हैं saying the session is very good, very informative. It doesn't matter कितना लंबा चला, इतना interactive रहा और इतनी information मिली है हमें. That excellent session. Thank you so much, Gaurav ji. Thank you so much. It was a privilege to be connected to this particular panel, जिसमें आप और स्तुति जैसे लोग हों, वहाँ पे कुछ भी चीज संभव है। और ये आप लोग का सहयोग ही था जिसकी वजह से हम लोग इतना सारा चीज लोगों के साथ शेयर कर पाए। वरना क्या होता है कि जो 15-20 मिनट, आधे घंटे में लोग बोर हो जाते हैं और हम लोग बहुत कुछ शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उस प्रकार के प्रश्न नहीं होते। और लोगों में क्या होता है कि जो ये तो मेरे को पता है, ये जान के क्या होगा कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो इस वजह से भी हम बहुत कुछ चीजों को नहीं जान पाते हैं कि जो अगर मैं पूछा, बोलते हैं ना कि क्वेश्चन बच्चों की तरह करना चाहिए। बच्चों को कभी ऐसा नहीं लगता है कि अगर हमने ये प्रश्न किया तो लोग बोलेंगे अरे इसको ये भी नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता है, हम बड़े होते जाते हैं, तो हमें शर्म आने लगती है। Correct. अगर हम पूछते हैं कि भारत में कितनी नदियां हैं, अब किससे पूछें? कोई अगर किसी से पूछें और ये बोले अरे इसको इतना भी नहीं मालूम, अभी गूगल से पूछते हैं। तो कई सारी चीजें हैं जो कि हम जब बड़े होने लगते हैं तो हमें शर्म आती है। तो कुछ चीजें बच्चों से सीखनी चाहिए, कुछ चीजें बड़ों से सीखनी चाहिए और कुछ चीज हमारे जैसे मीडियोकर जो हमारा जो ये ग्रुप है उससे सीखनी चाहिए। तो इसी तरीके से कोलैबोरेट होके ही दुनिया एक अच्छी जगह बन सकती है। आई थिंक मैं बस आपके यही पॉइंट्स एंड आइडियाज के साथ क्लोज करना चाहूंगी कि एट इंडिविजुअल लेवल हम लोग जितना कर सकें। मेरे को सिर्फ 3 आवर्स पता थे, आज गौरव जी ने 5 आवर्स बताए हैं और उसके साथ भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई है। अगर व्यूअर्स ने कुछ मिस किया है, कुछ भी फिर से रेफर करना है, आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। एंड मैंने एक कविता लिखी है कल, मैं जब आप खत्म करेंगे तो मैं उस कविता को बोलूंगा। थोड़ा उसमें मतलब कि मैंने अपना जो भाव है, मैं बहुत अच्छा लिखता तो नहीं हूँ लेकिन मैंने अपने भाव दिए हैं और आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू उसको शब्दों में पिरोने के लिए। तो ये शब्द ऐसे हैं कि तू कब ठहरेगा रुकेगा, तू कब ठहरेगा रुकेगा,
पूछ रही है धरती माँ। नदियां अविरल होंगी क्या, मतलब नदियां जो है वो क्या चलती रहेंगी, ये लगातार या रुक रुक के चलेंगी, जैसा हमने जगह जगह पे बांध बनाया हुआ है। तो नदियां अविरल होंगी क्या, पूछ रही है धरती माँ। पानी हवा की चाहत वाले, कर डाला तूने इसे जो मैला, मैं कब तक इससे रहूं, पूछ रही है धरती माँ। भेद न करती कभी किसी में, सबका किया कल्याण, क्यों नहीं फिर भी तुम समझे, पूछ रही है धरती माँ। सबने मुझको लूटा है कचरा इसमें डाल डालकर, अब भी अगर तू ना संभला, नाश तुम्हारा निश्चित है, तू कब ठहरेगा रुकेगा, पूछ रही है धरती माँ। जंगल काटा जमीनें खोदी, किया हवा का सत्यानाश, और जीवों को भी न बख्शा, पूछ रही है धरती माँ। बस इतना ही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही तो अच्छा बहुत था। जल्दी इसको मैं एक गाने में भी इसको डालने का कोशिश करूंगा। जी। और कुछ शौक है, तो मैंने सोचा कि किसी दूसरे का, किशोर कुमार और मुकेश के गाने से बेहतर है अगर खुद का लिखा अगर कुछ गाया जाए, तो वो थोड़ा एक अलग आएगा। तो मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में डेफिनेटली विल कम अप विद समथिंग बेटर। इससे मेरे को एक क्वेश्चन तो और याद कल आया, क्या आप कुछ इंस्ट्रूमेंट भी जी। बजाते हैं साथ में? मैं गिटार बजा लेता हूँ, लेकिन उतना बढ़िया नहीं, मतलब बस बजा लेता हूँ। और गाने का शौक है, कभी कभी गजल गाता हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र हैं दिल्ली में, पत्रकार हैं, काफी अच्छा लिखते हैं, नदीम अख्तर। वो सुबह सुबह मेरे को कॉल किया, तो बात करते ही उसने एक शेर कहा। तो जैसे उसने शेर कहा, तो उस शेर का मतलब ये था कि कुछ मतलब कुछ चीज ऐसी होती है जिसका कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका मतलब ये था। तो मेरे दिमाग में भी एक शेर आया, तो मैंने उसको बोला कि जो मेरे दिमाग में ये शेर आया कि आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। तो ये जगजीत सिंह की लाइनें हैं, मतलब कि बशीर बद्र की लिखी हुई हैं, और पता नहीं, या मैं भूल रहा हूँ, शायद बशीर बद्र की हैं कि नहीं है। तो मैंने वो बोला कि जो अरे यार इसको गाने में तो बहुत बेहतरीन है। तो मैं सुबह सुबह सो के ही उठ जगा था, और मैं बोला कि यार मैं एक बार गा के सुनाता हूँ तुमको। तो मैं जब उसको गा के सुनाया, तो बोला यार तू गाता क्यों नहीं है, तू तो बहुत अच्छा गाता है। मैं बोला यार ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा झिझक है। तो मतलब कि मैं सोचा कि क्यों ना अपना लिखा हुआ कुछ अगर गाया जाए एक टाइम पे। वाह, बहुत बढ़िया। ऑडियंस से भी बहुत सारी वाहवाही आ रही है। चलिए, दैट्स वंडरफुल। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, और कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो इस उपलक्ष्य में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिए गौरव जी से। थैंक यू सो मच गौरव सर, हमारे साथ इतना सारा टाइम देने के लिए, इतनी सारे हमारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। थैंक यू मेरे लिए सो मच बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इतने लोगों से जुड़े, और अपने जो भी मुझ में थोड़ा सा ज्ञान था, मैंने उसको साझा करने की कोशिश की, और काफी अच्छा लगा। हालांकि मैं तो काफी सारे क्वेश्चंस को देख नहीं पाया, लेकिन मुझे लगा कि जो आप लोगों ने पूछा, तो शायद लोगों की जानकारी, लोगों को जिस चीज की जानकारी चाहिए होगी उसी से संबंधित चीजें थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आने वाले समय में अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है कि हम आपके किसी काम भी आ पाए पर्यावरण के क्षेत्र में या डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में, तो जरूर याद करिएगा। और हमारा मकसद ही है पर्यावरण के लिए जीना, और आने वाला जो समय है हम अपने आप को पर्यावरण के लिए ही पूरा समर्पित देखते हैं। और ऐसा ना हो कि हम भी कॉर्पोरेट लाइफ में और वो भाग दौड़ की जिंदगी में इतने मशगूल हो जाएं कि जो बेसिक्स है उसको भूल जाए। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि पर्यावरण से जितना नजदीकी बनाए रखूं। और इसी के साथ आप लोगों का भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you, Stuti. Thank you so much for being here to host this session with us. Wonderful having you. Thank you, Gaurav. Thank you, Sakshi. Thank My you, pleasure. Thomas, for calling me here. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have a nice day. Thank you.